We are the nation that introduced reverse swing to the game of cricket, first of all. Second of all, we have Imran Khan, who is our honorable prime minister now. He's the one who brought neutral umpires to the game of cricket. We have been playing since 1950s. Okay, we have test status, we have one-day status, we have a World Cup, we have a T20 World Cup. So how the hell should we learn cricket from you? Like, do you even know how stupid that even sounds? Welcome back to Puckcourt and welcome back to another exciting group discussion, mostly in Urdu again. And this group chat is a favorite topic, cricket. We've already done a cricket episode before, after the 2019 ICC World Cup, but this time we discuss cricket again in a much longer and broader discussion with a focus on the recent PSL 2020 tournament, which unfortunately has been suspended due to the coronavirus epidemic. So just a quick briefing for those of us not following cricket closely. First of all, सब खैरियत तो है, आप cricket क्यों नहीं follow कर रहे? Secondly, PSL 2020 had completed its knockout stage and was heading into semi-finals when the news struck of a cricket player having symptoms of COVID-19. Now, there was already a lot of growing tension prior to that of the coronavirus pandemic, and a lot of players had already started going back to their home countries. PSL's schedule was already expedited to quickly wrap up and finish the tournament, and it was only 2 days from determining the final winning team. But when this news struck, however, of Alex Hales contracting COVID-19 symptoms, PSL was suspended on March 17, 2020, and the following day, we recorded this episode. At the time PSL was suspended, the points table looked like this in order by teams. Multan Sultans, Karachi Kings, Lahore Qalandars, Peshawar Zalmi, Quetta Gladiators, and Islamabad United. The first semi-final would be Multan Sultans versus Peshawar Zalmi, and the second semi-final would be between Karachi Kings and Lahore Qalandars. Now, unfortunately, those matches didn't happen again, but we hope that they do take place at some point in time. This episode has 4 guests, 2 returning, 2 new, and together we discuss our thoughts on PSL so far and international cricket, especially through Pakistani eyes. Our 2 new guests today are Sarah Malik from US and Hamza Qureshi from UK. The returning guests are Hassan Raza from UK, he was in our Away From Home episode, and Hamza Farooq from Miami, Florida, who recently joined us in our Do Takiki Baatein Wale episodes. And also, Hamza is actually helping me co-host this episode. He led much of the conversation and asked a lot of questions thanks to his greater knowledge of the sport, more so than myself. We have 2 Hamzas in this episode, so we tried to distinguish them by calling them by their last names, Farooq and Qureshi. तो फारूक और कुरैशी के हिसाब से कर लेंगे. Farooq और Qureshi कर लेते हैं. फारूक और कुरैशी कर लेंगे ताकि confusion ना हो बाद में कि 2 हमजा बैठे हैं. So at this point, let's go ahead and kick off our recording. Enjoy. यार मैं तो बड़ा disappointed था actually. ये I guess they made the right call. ये cancel करके PSL. लेकिन फिर मैं कभी the selfish guy inside me was like यार 2 ही दिन तो रहते थे. 2 दिन खेल के खत्म करते ताकि हमें पता लग जाता है रिजल्ट्स का. हाँ, वो सिर्फ 3 मैच ही बाकी थे ना. सिर्फ 3 मैच ही बाकी थे. I think लेकिन because one of the players के पास symptoms थे, I think that's the only reason उनको cancel करना पड़ा. Otherwise, I think they would have gone ahead with it. Alex Hales, हाँ. Yeah, वैसे वो Alex Hales तो कह रहा था. लेकिन वो उसने positive टेस्ट किया है. नहीं, वो यही कह रहा है कि misconceptions हैं कि वो लोग कह रहे हैं कि मुझे positive, like I have not tested positive for coronavirus. लेकिन उसी को तो symptoms थे. लेकिन कह रहा था कि मैं कुछ महसूस कर रहा था. Like he had symptoms, yeah. So he was feeling something, like he was feeling sick. उसके बाद तो फिर उन्होंने रमीज राजा को टेस्ट किया है, पूरी जो ब्रॉडकास्टिंग टीम है उन्होंने सबको टेस्ट किया है. कोरोना भी रमीज से भाग जाएगा वैसे जो बात है. वो जब अपनी दिखाएगा ना इंग्लिश रेंज दिखाएगा. बड़े भाग. Well, anyway, yeah, 2 दिनों के अंदर उन्होंने 3 मैचेस करने थे, semi-finals, both of them on one day. और I was really looking forward to them. फाइनल जो आज होना था फाइनल. आज फाइनल होना था. लाहौर में था, लाहौर में शायद फाइनल था. मेरे ख्याल से कराची में फाइनल नहीं था, वो मूव कर दिया शायद उन्होंने. नहीं, I think लाहौर में होना था. But पहली बार लाहौर कलंदर्स के पास चांस था फाइनल में आने के लिए. हाँ, मुझे इसी बात पे हंसी आ रही है यार. उन बेचारों को एक ही चांस मिला, वो भी फिर कोरोना ने बकवास कर दिया. नहीं, बेचारा लाहौर का फैन यूं इधर बैठा हुआ. ओए सदमा. ये मैं खुद लाहौर का फैन हूँ. क्यों? मुझे हारने का शौक है. अच्छा. अंडरडॉग टीम को सपोर्ट करता हूँ हमेशा. मैं पाकिस्तान का फैन हूँ यार, इससे बड़ी बात क्या है? हाँ, नहीं ये तो है. एंड में तो पाकिस्तान नहीं जीतना है ना, एट द एंड. Yeah, exactly, right. लेकिन इंटरनेशनली भी, like
हमें हारने की आदत है थोड़ी बहुत, तो ये अबे ये बड़ा दिल यार। होना पड़ता है। हमारे अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं हमारे। मैंने 2 वर्ल्ड कप्स देखे लाइव, पाकिस्तान ने मेरा पैसे भी ज़ाया, दिल भी खराब, अजीब ट्रबल। मैं एजेंडा को देख रहा हूँ कि यहाँ पे सवाल कौन से लिखे हैं, क्योंकि सबसे पहला सवाल यही था कि आर यू हैप्पी विद द आउटकम ऑफ द सेमीफाइनल्स एंड फाइनल्स। वो उसका आउटकम तो हम नहीं देख सके, लेकिन आई गेस वी कैन डिस्कस कि आर यू गाइस हैप्पी विद द फाइनल फोर। मुझे पता है कुछ इस्लामाबाद के फैंस हैं, या फारूक, आई थिंक you're a fan. हम्म। हाँ नहीं, वो तो वैसे भी मतलब काफी मायूसी तो हुई थी कि हम तो वैसे पहले जीत चुके हैं, इस्लामाबाद वगैरह जो था। लेकिन मैं वैसे तो इस्लामाबाद को वैसे ही थोड़ा बहुत पसंद करता था, लेकिन एट द एंड आई एम अ फैन ऑफ प्रीटी मच ऑल द टीम्स, क्योंकि एट द एंड पाकिस्तानी जीतेगा। लेकिन अगर कोई टीम को सपोर्ट करना है, वो तो मैं तो एक वैसे ही सपोर्ट करता हूँ कि इस्लामाबाद को सपोर्ट करूंगा। लेकिन जो स्टैंडिंग्स थी वो काफी अच्छी थी। वो कराची और लाहौर का मैच होने वाला था, जो कराची और लाहौर की तो वैसी लड़ाई चलती रहती है आपस में, दोनों शहरों के आपस में। Yeah. तो वो फिर से सेमीफाइनल में मैच होने वाला था, तो फिर वो तो उसमें काफी मायूसी हुई कि वो नहीं देखने को मिला। लेकिन वैसे जो पूरी स्टैंडिंग्स थी कि मुल्तान की टीम एकदम से बाहर निकली है, वो तो एक वो जो उनके तीनों मैच मुल्तान में हुए थे, वो तीनों मैच जीत गए, ठीक है ना। और उन्होंने क्या वहाँ पे जो पब्लिक आई है, क्या उन्होंने जो पूरा जो एटमोसफियर बनाया हुआ है, मतलब वो देख के मजा आ गया। 20 साल के बाद वहाँ पे जो है क्रिकेट हुई है, तो पूरा देख Yeah. के मजा ही आ गया कि क्या वहाँ पे उन्होंने पब्लिक आई है वहाँ पे, और क्या उन्होंने मतलब इतना सपोर्ट किया उनकी टीम को। फिर वहाँ पे वो 3 स्ट्रेट मैच जीते, मेरे ख्याल से उनके 12 पॉइंट थे, नंबर 1 वही थे। और उनको अभी मेरे ख्याल से उनका सेकंड ईयर था या फर्स्ट, सही सेकंड ईयर था ना उनका। हाँ, इनका सेकंड ईयर ना। सेकंड पिछले का साल तो वो बाहर हो गए थे मेरे ख्याल पिछले से। साल बाहर हो गए थे, हाँ। हाँ। तो फिर इनका तो उन्होंने काफी अच्छे तरीके से परफॉर्म किया है। और क्वेटा के ऊपर आते हैं। क्वेटा मेरे ख्याल से थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट थी इस साल, क्योंकि उन्होंने मतलब मेरे ख्याल से उनकी काफी अच्छी टीम थी, लेकिन एट द एंड वो एंड में बाहर हो गए वो। तो मेरे ख्याल से कुछ मैचेस में बारिश वगैरह भी हो गई थी, तो उसकी वजह से भी एक पॉइंट मिल गया, तो उसकी वजह से Yeah. भी काफी उस बेचैनी पैदा हो गई थी उनको। You know, बारिश से मुझे ये याद आता है, मैं बारिश की वजह से कहीं डिसअपॉइंट हुआ हूँ, सिर्फ इस लीग में नहीं, बट इवन इन द पास्ट, लाइक वर्ल्ड कप जब चल रहा था, कुछ मैचेस ओहो बारिश की वजह यार, से उफ। या पोस्टपोन हो जाती हैं ना। लाइक इन दिस डे एंड एज, क्या वो इस तरह के इंडोर स्टेडियम्स नहीं बना सकते, मतलब उनकी छत इतनी ऊंची हो के बॉल जाके लगे ना ऊपर। यार वो की ये भी वजह नहीं रखते ना, लाइक मेकअप डेज जैसे फाइनल सेमीफाइनल के लिए वो रखते भी नहीं है। मतलब सोच तो लो कभी। हाँ, वो मैच बिल्कुल कैंसिल हो जाता है। दैट्स फेयर इनफ, क्योंकि कहते हैं मतलब कि लोगों की अवेलेबिलिटी कम होती है। लेकिन ये जो स्टेडियम से बात करें ऊपर से बंद होने वाली, पहले कोई क्रिकेट नहीं यहाँ पे यूके में देखता है इतनी, तो उसके लिए कहते हैं फंडिंग की मेहनत मसला होगा। वरना आई थिंक इट्स डूएबल। लाइक ऑस्ट्रेलिया, आई थिंक दे probably will make Australia, stadium. if I remember, Australia does have one stadium which can be covered. Like this is way back in the day. There was like a series like Australia versus like World 11. Yeah. And the stadium था ना उसमें covered हो गया था. मतलब they put a roof over it. Like they had like a facility for it. तो मतलब ये है, they can do it, but stadium इतने बड़े नहीं हैं कि वो लोग इस तरह करें structure wise. अब क्रिकेट स्टेडियम्स ज़रा डिफरेंट होता है ना। अगर हम यहाँ पे देख लें नॉर्थ अमेरिका में, जो बेसबॉल स्टेडियम्स होते हैं वो भी काफ़ी कवर्ड होते हैं। कुछ तो 2-3 हैं जो कवर्ड हैं, लेकिन बेसबॉल और क्रिकेट में जो बेसबॉल के स्टेडियम के डिज़ाइन होते हैं उनमें शायद थोड़ा बहुत डूएबल होता है, लेकिन जो क्रिकेट स्टेडियम के डिज़ाइन होते हैं वो ज़रा डिफरेंट से होते हैं, ज़रा उनमें काफ़ी ट्रेडिशनल और टच डालते हैं उसके अंदर। हर शहर के क्रिकेट की फील्ड होती भी बड़ी है ना। फील्ड भी बड़ी होती है, बेसबॉल की फील्ड इतनी बड़ी भी नहीं होती। Yeah. तो Right. काफ़ी वो पूरा सा ओवल सा होता है, तो काफ़ी उसमें फंडिंग चाहिए होगी कि पूरा स्टेडियम को कवर कर लें। तो ऊपर से फिर वो सारे जो हर क्रिकेट स्टेडियम बना हुआ है वो हर शहर के लिहाज से बना हुआ है, तो फिर सारी जो मतलब पूरा स्टेडियम की जो ब्यूटी है वो शायद उसको टच नहीं करना चाहते, उसको छूना नहीं चाहते। Yeah. तो मेरे ख्याल से बेहतर यही है कि मैंने नहीं ख्याल है आज तक कोई ऐसा स्टेडियम बना हो जिसपे काफ़ी पूरी जो छत है वो बंदी हो। तो मेरा ज़्यादा ख़्याल है कि इसी तरह रहना चाहिए कि मतलब वो बिल्कुल वो या कोई छत-वत हो ही ना, क्योंकि फिर वो कंडीशंस भी मैटर करती हैं कि कंडीशंस कैसी हैं, और वो सारा जो होता है ना वो गेम का हिस्सा बन जाता है बाद में जाके। तो पिच की कंडीशन Right. कैसी, क्योंकि टेस्ट मैच में तो यही होता है ना। टेस्ट मैच में आप देख रहे हैं अगर बारिश हो गई तो फिर पिच की जो मॉइस्चर भी, या वो मॉइस्चर न्यूजीलैंड हो जो जाती समुद्र के है, पास होते हैं उनका अलग सीन होता बहुत है। ज़्यादा फैक्टर बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। तो मेरा ख्याल से क्रिकेट में जो रेट्रैक्टेबल स्टेडियम रूफ्स या जो भी छत पूरा कवर्ड स्टेडियम हो, वो इट्स नॉट रियली डूएबल, क्योंकि आपको ये सारी चीज़ें जो होती हैं, सारी जो कंडीशंस वगैरह होती हैं वो आपको देखनी पड़ती हैं। अगर आपको किस तरह मतलब जो मॉइस्चर वगैरह होती है ये वाला, तो यू कैन रियली हैव अ क्लोज स्टेडियम रूफ इन माय ओपिनियन। कंडीशंस के लिहाज से होता है ना, और बॉलर के लिहाज से भी चाहिए होती है कंडीशन, लाइक हवा सन वगैरह होता है, ये हवा चल रही होती है, सो ऑल हेल्प्स इन द गेम इटसेल्फ। बिल्कुल सही बात है। ये बंद करके पूरी गेम ही बैट्समैन की हो जानी। इट्स ऑलरेडी अ वेरी फेवरेट गेम टुवर्ड्स द बैट्समैन। एवरीथिंग सीम्स टू गो इन देयर वे। उनकी बल्ले इतने बड़े-बड़े होते हैं, एक मारते हो जाती है।
अब बेचारा हसनैन जैसा बॉलर हो, कोई यंग सन 19 जो भाग के आ रहा हो, फ्लिक करे चौका पड़ जाए, वो तो अब T20 में ये भी है ना कि जो फील्ड होती है वो काफी छोटी होती है, वो बाउंड्रीज काफी छोटी कर देते हैं, तो ये तो खैर ऑब्वियस सी बात है क्योंकि T20 तो है ही यार, मतलब बस पैसे बनाने के चक्कर है, असल क्रिकेट थोड़ी अब है। इसमें मसला इसमें ये है कि हम अभी बात करेंगे T20 में, वनडे और टेस्ट में। मोहम्मद आमिर जैसे प्लेयर ने टेस्ट से रिटायर कर दिया क्योंकि उसको T20 पे फोकस करना है, क्योंकि वो डिफरेंट लीग्स बन चुकी हैं हर मुल्क में। ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश है, इंडिया की IPL है, पाकिस्तान की PSL है और फिर बांग्लादेश की मेरे ख्याल से एक है। तो वो कहते हैं कि हम टेस्ट क्रिकेट पे इतना क्यों फोकस करें जब हमें T20 में ज्यादा पैसे मिल रहे हैं और दूसरी टीम से लीग खेलेंगे तो ज्यादा पैसे लेकिन मिलेंगे। उनको आमिर को कहना चाहिए यार कि वो इस तरह ना करे, cause बाकी जो मतलब यंग बॉलर्स निकलेंगे ना वो भी तो उसी को फॉलो करके करेंगे। आमिर ने दिल्ली तोड़ा है, जज्बात बदल दिए, हालात बदल दिए। और मेरे लिहाज से जो आपके जो टेस्ट क्रिकेट होती है ना, टेस्ट क्रिकेट ये वनडे भी, लेकिन टेस्ट क्रिकेट जो आपकी स्किल्स को सही तरह मेजर करती है, क्योंकि आपके जो स्टेमिना होता है और आपका जो पूरा जो आपका जो एक स्टेमिना होता है, आपका किस तरह आप गेम को अप्रोच करते हैं, वो सारा कुछ टेस्ट क्रिकेट में। वो तो असल क्रिकेट है ना, असल टेस्ट क्रिकेट तो वही है। और मैं हमेशा यही कहूंगा कि इफ यू आर योर क्रिकेट फैन, यू लाइक टेस्ट क्रिकेट, यू लव टेस्ट क्रिकेट। इट्स इम्पोर्टेंट बिकॉज टेस्ट क्रिकेट के जो बात होती है ना, वो आपको लग रहा है कि एक दिन एक कोई और बंदा जीत जाएगा, फिर दूसरे दिन एकदम से मैच टर्न हो गया, फिर एक दूसरा बंदा एक जीत जाता है, और फिर अगर बारिश भी हो गई उस चीज में तो फिर टेस्ट मैच एकदम से टर्न हो जाता है। तो आई थिंक टेस्ट मैच में ड्रामा बहुत होता है, और अगर टेस्ट मैच ड्रॉ भी हो जाए ना, उसका ड्रॉ होने का भी अपना मजा होता है। राइट, एग्जैक्टली, सही बात है। ये नहीं कि मतलब कि अगर जीत गए या हार गए या ड्रॉ भी हो गया तो ये नहीं कि आप मायूस हो गए कि ड्रॉ हो गया, लेकिन ड्रॉ होने का भी अपना मजा होता है। जी, और ये टेस्ट फॉर्मेट आपको कहते हैं कैरेक्टर करता है टेस्ट में, योर पेशेंस, योर मेंटल स्ट्रेंथ इज फुली टेस्टेड इन दिस फॉर्मेट, माइंड गेम्स वगैरह। हाँ, और इस साल भी काफी अच्छे सीरीज हुए, मतलब टू प्रूव। हमारे पास अभी सबसे अच्छा बॉलर टेस्ट का मोहम्मद आमिर ही है, वो आज ही इजीली वॉक इन द साइड। मैं सोचता हूँ यार वो आमिर ही इतना जबरदस्त बॉलर है, उसकी स्विंग कंट्रोल बहुत फेस किया, वो बहुत जबरदस्त, उसकी एक्यूरेसी अच्छी होती है। आमिर का ये है कि आमिर वेरिएशंस काफी कराता है, तो हर वेरिएशन करा सकता है। वो टेस्ट का बहुत बेहतरीन बॉलर था, वो बेस्ट बॉलर था। मुझे तो नहीं, but the thing is, once he came back from his ban, he wasn't that same bowler. He lost his touch in test bowling, which I think also affected. अगर उसको 5 साल का बैन ना लगता ना, तो उस 5 क्या से क्या होता बॉलर वो उसकी प्रैक्टिस चलेगी। उसने बैन के बाद भी इतनी बेहतरीन बॉलिंग की है ना कि बंदा देखता ही रह जाएगा। उसने एक एशिया कप में बॉलिंग की थी, उसमें काफी अच्छे मैचेस उसने कभी एशिया कप में तो मतलब कि नेक्स्ट लेवल बॉलिंग, समथिंग टू प्रूव। उसके अंदर वो आग थी, रास्ता था, आग बेचारी मरी गई, उसने टेस्ट रिटायरमेंट ले ली। हाँ एग्जैक्टली, उसको पैसे को शॉक चढ़ गया उसको। हाँ एग्जैक्टली। उनको वैसे नसीम और शाहीन को लिमिट करना चाहिए T20 के, वरना वो इतने यंग है ना, लाइक फिजिकली उनको मसला पड़ जाएगा। इतने ये लीग्स खेल at this moment Shaheen is our best bowler and he's playing every format as well. हाँ, he needs rest। हाँ, उस पे बहुत बोझ है बेचारे पे, बहुत काफी बोझ है, बहुत बोझ है। सही बात। वो तो मैंने देखा था, he is playing with a broken thumb, one of the PSL matches। वो तो मैंने बाद में देखा था। हाँ, like they need to preserve them for like असल like test। ये नहीं है कि हर लीग में आप घुसे जा रहे हैं 16-19 साल के बच्चों को। हाँ, तो फिर उनकी जो करियर की लॉन्जेविटी है वो भी कम हो सकती है ना, क्योंकि वो इतना खेलेंगे तो फिर उनको इफेक्ट तो पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से मैं इसके बारे में बात करना चाहता हूँ कि जो T20 की हिस्ट्री है, तो T20 का आगाज जो है वो कहाँ से हुआ था। जहाँ तक मैंने सुना है कि पाकिस्तान में तो खैर गलियों में क्रिकेट 20 ओवर के मैच होते रहते थे, लेकिन जो हर चीज फॉर्मली 5 ओवर के गया था वहाँ पे पाकिस्तान में, 5 ओवर के मैच लगा रहे। मैंने कहा खुदा का खौफ को, मुझे वो लोग ने सुबह 5 मिनट उठा के ले गए हैं और 5 ओवर के मैच लगे। मैंने कहा खुदा का खौफ करो, आप लोग क्या कर रहे हैं। सही बात है। मेरे ख्याल से 20 ओवर के मैच तो खैर गलियों में होते रहते थे, लेकिन जो हर चीज फॉर्मली इंट्रोड्यूस होती है ना वो हमेशा इंग्लैंड से होती है, क्योंकि इंग्लैंड में गेम का जो है वो आगाज हुआ है। इंग्लैंड इन्वेंटेड द गेम, तो हर चीज वहीं से इंट्रोड्यूस होती है, क्योंकि बिग 3 है ना, इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया, मतलब वहीं से चीज इंट्रोड्यूस होगी, वहीं से शुरू हुई थी। 2003 की बात है। तो मेरे ख्याल से उस वक्त तो खैर काउंटी क्रिकेट खेली जाती थी काफी ज्यादा, काउंटी क्रिकेट ज्यादा T20 खेलते थे, जब तक ये फॉर्मली उसको इंटरनेशनल लेवल पे नहीं लाए थे। तो पहला वर्ल्ड कप जो पहला वर्ल्ड कप हुआ था इस चीज का, वो तो 2007 में हुआ था, जो इसमें हम वो दैट वाज लाइक द वर्स्ट मोमेंट ऑफ माय लाइफ, जो मिसबा ने जो स्वीप मारा पीछे। यार मिसबा को गलत ब्लेम देते हैं, उसने मैच बनाया भी था, हम पहले से आउट हो गए थे। जब वो ओवर शुरू हुआ ना, उसने शायद पहली बॉल पे या दूसरी बॉल पे छक्का मारा जाके। In the air, this is 6. It's a magnificent strike. Lands just in front of the side screen.
which means Pakistan one strike away from winning this. मैंने मेरी जो चीखें निकली हैं, मैं कूद रहा हूँ घर में, मैंने कहा ये मैच जीत रहे हैं, ये मैच हमारा ही है, ये मैच हमारा ही है. Unbelievable calmness under pressure. He just looks so cool. Can he keep that cool going? मैच हमारी है. फिर एंड में वो पता नहीं वो स्वीप शॉट खेलता है, मैं समझा छक्का हो गया क्योंकि वो बहुत ही ऊंची हवा में जाती है ना, मैं समझा छक्का हो गया, मैंने कहा जीत गया. फिर एकदम से वो पकड़ लेता, मैंने कहा नहीं यार. उस वक्त जो मैं हाउस जो रोवा हूँ ना. In the air, Srishan takes it. India win. Unbelievable scenes here at the Bull Ring. Jeff Lawson can't believe it. The Pakistan players stunned. लाइक लिटरली वो मसला ये भी है ना कि अगर किसी और के खिलाफ होता चलो फिर ठीक है, इतना शायद दुख ना होता, लेकिन वो था भी वो इंडिया के खिलाफ मैच ना, तो वो बस बहुत खलता है, बहुत खलता है, वो बहुत खलता है. लेकिन at the end of the day we came back in 2009 and won it again, so I think that kind of made up for it, but still that at that point it really hurt. It really hurt. I think because of that World Cup, IPL became what it is now. अगर इंडिया ना जीता ना वर्ल्ड कप वाला, वो फ्रॉड है यार आईपीएल. आई मीन लेकिन PSL honestly IPL से बेहतर है क्वालिटी में. लाइक आईपीएल में एंटरटेनमेंट है. IPL तो वैसे फिक्सिंग, आईपीएल में पैसा भी ज्यादा है. वही बात है. हाँ सही बात है. आईपीएल में सिर्फ एंटरटेनमेंट है और पैसा भी ज्यादा है, एंटरटेनमेंट भी काफी है, और मेरे ख्याल से वो काफी कॉर्पोरेट ही है. मतलब उनका जहाँ तक अगर आप हमारे PSL में देख लें तो काफी प्लेयर्स को काफी मजा आ रहा होता है खेलते हुए. वेव रिचर्ड्स को देख लो, क्वेटा के लिए वो कूद रहा होता है, छलांगे मार रहा होता है. सैमी को देख लो कि वो तो कहता है कि वो पाकिस्तान में मैचेस होंगे, उसने बड़ा प्रमोट किया. डेरन सैमी इज अ वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ PSL. He's a big hand. लेकिन ये कोच बनने क्या ड्रामा हो गया था उसके साथ. ये तो एमी दे दिए भी होगी, ये भाई रहे हमारे साथ 2-3 साल, इसको कोच बना दो. ऐसा ये है, बन नहीं सकता. He was only in the team as a captain. ना बॉलिंग हो रही थी ना बैटिंग हो रही थी, कैप्टन के हैसियत से था. So I think just to keep him within Peshawar Zalmi, उसको कह दिया कि आप प्लेयर कम कोच रोल ले लो. हाँ, उसको तो खैर ऑनररी सिटीजनशिप भी मिल गई अब तो. उसको दे दी, मैंने कहा भाई ले लो. क्योंकि उसने काफी मेहनत की, उसने इंटरनेशनल प्लेयर्स को काफी ऑन बोर्ड लाया वो कि पाकिस्तान में सारे मैचेस होंगे. और ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि जो 2009 में जो हादसा हुआ था श्रीलंकन टीम के साथ, उसके बाद मैचेस आना और फिर स्टेडियम्स को मतलब just to see the stadiums lit up again and with the crowd again, it was just a great sight to see. And it's good for Pakistan in general because you have all of this business coming in and you have all these fans going, you know, in just every regards it's a great thing to have the whole tournament in Pakistan. क्योंकि दुबई में अगर करते भी थे ना ये लोग, तो दुबई में काफी वो स्टेडियम्स खाली पड़े हुए हैं और कोई लोग इतने ज्यादा लोग नहीं है. सब जुम्मे के दिन लोग आ जाते हैं ज्यादा, या हफ्ते के दिन भी तो लोग आ जाते हैं. तो वो इतना उसमें इतना मजा नहीं आया था दुबई में करने का, तो वो फील नहीं आ रही थी. यहाँ पे तो सारे स्टेडियम्स भरे हुए हैं, सब पूरा माहौल बना हुआ है. हर शहर की टीम जो है वो उनको सपोर्ट की जा रही है. फिर सारे वो वॉच पार्टीज भी हो रही हैं पूरे शहर में. तो पूरा ये जिस तरह नॉर्थ अमेरिका में होता है ना कि NFL का और ये NBA का जो जोश होता है, वो जोश जो है वो पाकिस्तान में भी आ रहा है PSL की वजह से. और इसमें ये भी हो रही है कि ट्रेड्स भी होती हैं, और ये भी होता है जिस तरह के नॉर्थ अमेरिकन स्पोर्ट्स में होता है. मेरे ख्याल से यूरोपियन स्पोर्ट्स में भी शायद होता हो कि ट्रेड्स वगैरह होती हैं. ट्रांसफर मार्केट भी होता है. तो वो सिलसिला जो है वो पाकिस्तान में आ रहा है, और ये PSL की वजह से आ रही है. पहली दफा देख रहे हैं आप इस तरह की ट्रेड्स हो रही हैं. और वही फॉर्मेट है जो नॉर्थ अमेरिकन स्पोर्ट्स या वेस्टर्न स्पोर्ट्स में होता है कि फ्रेंचाइज ओनर है, उन्होंने एक जनरल मैनेजर बिठाया हुआ है, वो सारी ट्रेड्स करता रहता है. So वही फॉर्मेट है, तो वही फॉर्मेट आ रहा है. So it's good to see all of this, you know, just coming in, and then within the 5 years that PSL existed, I think it's really done a good thing for Pakistan cricket. But I think one thing I want to discuss with you guys is that, do you think it's producing talent the way it should, or do you think more talent is being produced with under 19 teams? Mix and match, I think. हाँ, mixed feelings है मेरे इसके बारे में. जी mixed feeling है, but it's more towards the positive side कि talent produce हो रहा है. More importantly, it's for the experience that you get from these international players like Shane Watson. He's been playing cricket for such a long time. He's played in like Australia की जब successful खेले, Brett Lever खेले, Ponting उनके साथ खेला हुआ है. अगर वहाँ से आपको experience मिल जाए, that's like priceless experience. So I think that's a really good thing for these youngsters. And so I do think this is very beneficial to these, and it will produce more talent in coming years. Well, I think like फर्क है फिर भी like अगर आप हसन अली और शाहीन को देखो ना, तो हसन अली तो टेक्निकली लाइक PSL का फाइंड है, बट उसकी क्वालिटी मतलब over the long term, or Shaheen who came through the entire circuit, like there's a difference. I think PSL is a good way to find talent, but ये नहीं है कि बस PSL में उसने बहुत अच्छा कर दिया तो अब
उसी को टीम में डाल रहे हैं. लाइक उनको फिर भी ग्रूमिंग की ज़रूरत है, स्पेशली T20 इज़ लाइक नॉट असल क्रिकेट ना. तो Exactly. I was going to say, like, Shadab's a good example. Shadab को उन लोगों ने सीधा उठाया था T20 से, and they put him straight to the T20 international team. लेकिन they have groomed him a bit. Like, उसने one day भी खेले हैं, उसने थोड़े test match खेले हैं, and he's learning in test match जो उसने खेले थे. Which is probably the right way to go, rather than just go literally PSL से उठा के T20 international matches खिला लो और बस उनको कह दो कि आप बड़े player बन गए हो. I can't really comment much on this, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप में से कोई समझा सकता है कि इसमें PSL में जो लोग आ रहे हैं, एक तो हमने बात कर ली ना कि PSL as a way to produce talent for the international team, लेकिन PSL से पीछे से कौन प्लेयर कहाँ से आ रहे हैं? Like what's the process for an ambitious player in Pakistan to get into the league? ये सब कहते हैं टीमों ने अपने कैंप स्टार्ट किए होते हैं लाहौर के अंदर. कहते हैं लाहौर को मिला था, मैं हारिस रऊफ यहाँ से लाहौर को कैंप्स मिला था. तो कलंदर्स की कैंप है. हाँ जी जी, लाहौर कलंदर की अपनी कैंप है. वहाँ पे कहते हैं फास्ट बॉलर्स दे, क्योंकि जो इनकी अपनी टीम के फास्ट बॉलर्स होते हैं ना, दे ओनली बॉल टू ओवर स्पेल इन द ट्रेनिंग. उसके बाद वो थक जाते हैं. दे हैव टू लाइक एक्चुअली टेक रेस्ट फॉर द अपकमिंग गेम्स. So that's when they get the net ballers in, जो कहते हैं obviously they're not part of the team, लेकिन वो वहाँ पे कहते हैं अपनी skill showcase करने आते हैं और कुछ show करता है भी to ball against really good a T20 batsman that obviously pushes you as well. तो कहते हैं वो करने आ रहे होते हैं वहाँ पे at the same time scouting में चल रही होती है. तो अगर उन्हें कोई पसंद आता है उसको अंदर रहते हैं और कहते हैं ये genuine effort भी इन लोगों ने ये incentive start किया है around the whole Pakistan के. वो डिफरेंट जगह जाते हैं, वहाँ पे टूर्स लगाते हैं, वहाँ पे फास्ट बॉलर्स को उनकी ऑडिशन कर लेते हैं, अपने उनकी ट्रायल्स लेते हैं वहाँ पे. सो देयर इज अ कॉन्शियस एफर्ट गोइंग ऑन. इसमें मेरे ख्याल से एक जो मसला है, मसला तो खैर नहीं, जो एक सिचुएशन है, जो एक रियलिटी है इसमें, जो अगर आप पाकिस्तान की पिचेस पे खेल रहे हैं ना, तो आपको शायद इतना ज्यादा एक्सपोजर नहीं मिल रहा है इंटरनेशनल पिचेस के ऊपर. क्योंकि मेरे ख्याल से एंड आई ऑलवेज से द सेम थिंग, इफ यू वांट टू लर्न द गेम ऑफ क्रिकेट यू हैव टू गो टू इंग्लैंड एंड प्ले इन इंग्लैंड. जितने भी बड़े बॉलर हैं, जितने भी बड़े पाकिस्तान के प्लेयर्स आ चुके हैं, वसीम अकरम, वकार यूनिस, इमरान खान, they all played county cricket in England because that's where you learn the game, that's where you play on the pitches in different conditions that you get outside your comfort zone a little bit and then you play in those conditions and that grooms your player skills and tenacities even more. So उससे आपको का बहुत बड़ा फायदा होता है. So मेरे ख्याल से अगर ये पाकिस्तान की पिचेस पे परफॉर्म कर रहे हैं, it's good, but I think they always get a wake up call whenever they go. अगर ये इंग्लैंड के साथ जाके सीरीज खेलते हैं, ऑस्ट्रेलिया के साथ जाके सीरीज खेलते हैं, तो वहाँ पे उनको बहुत बड़ी एक wake up call मिलती है. तो they get exposed too quickly because they're not used to playing on those conditions and they kind of get exposed to it. So that's always the main thing. It's like, yeah, PSL is a good stepping stone for them. एक अच्छा stepping stone है, लेकिन at the end of the day, it's all about international cricket if you want to get on the international team. So once you get on the international team, जब आप आएंगे उस टीम के ऊपर, then you have to go play in these different conditions and then you have to like adjust your game to it. I think the pitches in Pakistan still I think are a good way for fast bowlers because pitches in Pakistan offer you no pace. काफी dead होती हैं, ball lower स्टे करी होती है. वहाँ पे अगर आप टेस्ट खेल लें, ठीक है, day 3 day 4 के अंदर fully dead होती है pitch. तो fast bowlers को फिर भी they have to stick with the patience. So I don't think that's much of a problem. अगर वो यहाँ पे आते हैं, यूके में आते हैं फास्ट बॉलर्स, लाइक दैट्स अ ड्रीम कम ट्रू. यहाँ पे ग्रीन पिचेस होती हैं, मूव करी होती हैं. ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी दे गेट रियली गुड कैरी थ्रू. तो आई थिंक फास्ट बॉलर्स से, लेकिन स्पिनर्स के लिए डेफिनेटली अप्लाई करता है, क्योंकि जब वो स्पिनर्स यहाँ पे आते हैं, ऑस्ट्रेलिया आते हैं, वहाँ पे स्पिन गेम ही कहते डिफरेंट है. वहाँ पे बाउंस डिफरेंट होता है, वहाँ पे स्पिन द अमाउंट ऑफ टर्न्स इज वेरी डिफरेंट. और यूके में तो बॉल टर्न ही नहीं होती एंड सो यू हैव टू यूज डिफरेंट टैक्टिक्स. सो स्पिन के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट है, उनको डिफरेंट जगह लेके जाया जाए. I think more so is that, yeah, exactly. Batsmen की game बहुत improve होती है because that's what happens with like all the visiting teams that come abroad, like let's say Australia, South Africa, England. उनकी batting की कमजोर रह जाती है because they're used to facing like on those kind of pitches. तो अगर हमारे batsmen अगर हमारे बाहर जाएं, like I think last year बाबर आजम आया था and Nazar Ali, they got a chance to play on county cricket, which I think must have made a difference to their game. तो वो एक है opportunity that they should take. अच्छा, इंटरेस्टिंगली अगर आप ये PSL में भी देखें ना, दिस ईयर्स PSL, अगर आप टॉप बैट्समैन देखें ना, जब रन्स वाइज जिन्होंने सबसे ज़्यादा रन्स किए हैं, बाबर आजम इज़ ऑब्वियसली नंबर 1, लेकिन उसके बाद सारे बाहर के प्लेयर्स हैं. सारे नहीं, लेकिन मेजॉरिटी. ये भी बात है, लेकिन बैटिंग इज स्टिल समथिंग दैट्स नॉट. हैदर अली जो U19 वर्ल्ड कप में भी उसने अच्छा खेला था, वो इसमें भी अच्छा खेल रहा है. तो आई थिंक definitely he needs to be given a chance. Yeah, he was one good prospect in this tournament. PSL से निकला ना batsman हमारा Hyder Ali, he looked good.
हाँ नहीं सर जी कहते हैं like in my opinion like scoring a lot of runs like it's not necessarily on how good of a player that you are. It is depending on your skill set. लेकिन कहते हैं पाकिस्तानी प्लेयर्स जो से होते हैं ना इनका शॉट सिलेक्शन बहुत बुरा होता है. ये एक चक्का मारते हैं कि इनको लगता है दूसरी तीसरी बॉल भी चक्का दोबारा मार सकते हैं. जैसे हफीज यहाँ हफीज हो गया ठीक है. अब आप ये देख लें मतलब फॉर एग्जांपल दिस गाय बेन डंक क्लीन लेन ठीक है. इन लोगों ने खेला हुआ ऑल राउंड ठीक है. दे नो हाउ टू रिस्पेक्ट अ गुड बॉल. पाकिस्तानियों के अंदर कहते हैं इनकी ईगो को होता है. अहमद शहजाद को अब देख लें इतना बड़ा एक्टर है ठीक है. और उसको किसी ने बोल दिया भी तुम विराट कोहली लगते हो. उसने मान लिया और वो उसको बर्बाद कर दिया उन लोगों ने. ओ भाई उसका वर्कआउट देखो और वो विराट कोहली का वर्कआउट देखो, जमीन आसमान का फर्क है. लाइक लिटरली उसके बारे में मीम भी बनी थी एक कि वो उसका वर्कआउट देख लो, अहमद शहजाद का वर्कआउट देख लो, कोहली के हिसाब से वर्कआउट देख लो. वो एक ही लोहा उठा रहा है. विराट कोहली जो है वो पता नहीं कितना वेट उठा रहा है. और नहीं सर जी इसने एक वो बड़ा गुनाह किया है. इसने कहते हैं स्विमिंग पूल के अंदर ना लगाई और कैप्शन लगा दी और उसी वीक के अंदर ना रोनाल्डो ने भी सेम पिक्चर के अंदर कैप्शन लगाई. रोनाल्डो से अपना कंपेयर कर रहा है. हाँ या डेफिनेटली अहमद शहजाद इज. This goes back to my frustration with the international Pakistani cricket team क्योंकि काफ़ी अरसे से अहमद शहजाद को उन्होंने रखा हुआ तक इंटरनेशनल टीम है जो कि बहुत बड़ी बात है. मेरे ख्याल में एक गुनाह होना चाहिए कि आपने एक स्लॉट लिया हुआ है 11 बंदों की टीम है representing the whole country and you're just not performing. Definitely, yes. The thing is, he started off well. He had potential. उसे शुरू में थोड़ा दिखाया था glimpse, but वही बात है कि dip आ जाती है या whatever जो भी होता है confidence के लिहाज से and then इनका प्रोफेशनल बहुत बुरा है. आप कहते हैं हसन अली की जो ये डिप आई है इसी वजह से ही गॉट सो डिस्ट्रैक्टेड. इतने आर्टिकल इतनी कंट्रोवर्सीज की चली है. अब क्या बताऊं. आप इंडिया चले जाए ठीक है. वहाँ पे इंडिया के केएल राहुल और हार्दिक पांड्या उन लोगों ने कॉफी विद करण के ऊपर जाके एक दो चीज बोली थी. उनको 6 महीने के लिए बैन कर दी स्ट्रेट वे. दे सेट हाई स्टैंडर्ड्स. यहाँ पाकिस्तान में वो नहीं है. पाकिस्तान में यू कैन डू स्टफ आउटसाइड क्रिकेट एंड गेट अवे विद इट एंड दैट ऑब्वियसली लाइक पिज्जा खाना बर्गर खाना हर चीज. हाँ एग्जैक्टली. मैं इसके ऊपर ही आने वाला था कि जो फिटनेस का मसला है ना, फिटनेस का बहुत बड़ा मसला है. लाइक से शर्जील खान के हिसाब से देख लो. शर्जील खान एक बहुत जबरदस्त बैट्समैन है. उसको ओपन करना चाहिए. मेरे ख्याल से उसने काफी अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं. वो इंटरनेशनल टीम में उसको भी आना चाहिए. लेकिन उसके साथ एक मसला है, वो फिटनेस का मसला है. और ये सिर्फ उसके साथ नहीं है, सरफराज के साथ भी मसला था. सरफराज तो चलो खैर सरफराज उसने तो खैर मोइन खान के बेटा ओपन करता है 3rd नंबर पे आता है. आजम खान उसका हाल देख लो यार. इन्होंने दंगल लड़ाओ की कर रहे हैं. और तो उसकी बैटिंग फिर भी अच्छी थी लेकिन यार हाँ हद है. सोचो 5 साल हो रहा है क्वेटा की टीम में. 5 साल आई थिंक उसने सिर्फ इस साल आके मैचेस खेले हैं. मोइन खान का बेटा था उसके से वो साथ रहा है कंटिन्यूअसली. बट फेयर इनफ he gave a couple of performances to maybe justify his batting. लेकिन वही बात आती है तुम कह रहे थे फिटनेस. हाँ तो फिटनेस तो है ही नहीं. फिटनेस तो है ही नहीं. ये तो बात. या तो मैंने सुना है मिसबा ने बैन कर दिया था बिरयानी खाना और ऑयल के खाने खाना. उसने तो वो किया था लेकिन बाकी तो इतना अच्छा नहीं कर रहा. वो तो मिकी आर्थर ने भी काफी जोर लगाया था. बट इनिशियली लगा था कि it has been a difference. But then again वही बात है कि मिसबा भी फ्रॉड ही है. It's come back. हाँ मैं मिसबा से बहुत डिसअपॉइंट हुई हूँ वैसे. आप लोग मुझे फवाद आलम का कसूर बता दें. क्या गुनाह किया है. कराची से है ना इसलिए. बस मतलब कि क्या यार मिसबा अच्छा खासा था. I think since he's become coach काफी लोगों के उसके opinion change हो गया. Like he hasn't been doing what we expected him to do. हाँ किसी कोई सेंस नहीं बन रही जो वो कर रहा है. अजीब like either you die hero or become Pakistan's coach. पहली टूर में उसने उमर अकमल को और अहमद शहजाद को वापस बुला लिया था. फर्स्ट टूर एज कोच. सोचो. हाँ वो श्रीलंकन की जो और फिर फवाद आलम को इंक्लूड करके वो बेंच पे बिठा रहे हो मतलब क्यों. उसको मैच भी नहीं खिलाया उसको. और वो एक बच्चा से श्रीलंकन टीम से हार गया लाहौर में. And you're losing these games at home. It's completely embarrassing that you lose to a very B team. एक B team की श्रीलंका की टीम है. You lose to that team at home. It's completely embarrassing. I mean there should be no excuses for that. I mean you're playing your full team. They're वो अपनी बच्चा टीम ला रहे हैं. They're not even full strength. And you're losing to them at home. So I mean that's an excuse. मतलब पाकिस्तानियों को असल में फॉरेन कोच की जरूरत होती है और कोई ये बात मानता नहीं है. हाँ ये बात तो सही है. मिकी आर्थर में और मिकी आर्थर को क्यों उन्होंने निकाला. वही कह रहा हूँ. He was doing a good job for Pakistan. He was actually changing us. बेचारे को स्केपगोट बना दिया. और उसका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं किया उन्होंने. Which I think they should have done because उसके टाइम में काफी इंप्रूवमेंट्स आई थी. आप टेस्ट की नंबर 1 टीम थे. आप T20 के नंबर 1 टीम थे. वनडे और सबसे बड़ी बात है he was very sincere like to the players especially जो young talent. हाँ like असल में he cared. आशिक है वो. हाँ like literally उसने I think tweet भी किया था कि he's like my son या इस तरह कोई चीज है.
Very sincere. The funny thing is जिस कमेटी ने उसको निकाला था उसमें मिसबा था हाँ लेकिन उसको निकालने के बाद खुद अप्लाई कर लिया कोच बनने बॉब वुलमर भी बहुत जबरदस्त कोच था, लेकिन बॉब वुलमर ने भी कह दिया था यार उसने तो मार दिया टीम ने यार आयरलैंड से हार के Ireland. That was also the biggest embarrassment. If we talk about one of the most embarrassing that moments, was so most embarrassing moments in Pakistani cricket, that has to be number one. Losing to Ireland. I don't know how that happened. It should have happened in the first place. That was 2007. When did that happen? yes No, yes. 7. 2007 में Seven, हाँ। 7. Well, मुझे बस हल्का सा याद है Right. लेकिन मैं बहुत रोई थी oh man, it was bad. I mean, उसमें Yeah, इंजमाम yeah. coach था, Woolmer was the coach, and उसके बाद वो मर गया बेचारा यार, like come on. हाँ बेचारे को हार्ट अटैक हमने करा दिया सीरियसली टीम ने उसे मार Yeah, दिया exactly. And सदमा से exactly. I mean, that was just one of the most embarrassing moments that Yeah. I've had to see as a Pakistan cricket fan, because it's like you're losing to a practice team. Like they're just there just for like participation. Yeah. They're just हाँ क्योंकि उस वक्त तो आयरलैंड भी था भी कुछ नहीं मतलब अभी भी वो थोड़ा बहुत कर लेते हैं लेकिन तब तो कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं करते था. थे And the fact that you just lose to them like नहीं that. अब काफी इम्प्रूव हो गया, अब तो उनको कहते हैं उसका स्टेटस भी मिल गया, टेस्ट स्टेटस। हाँ, टेस्ट मिल गया, लेकिन उस वक्त तो वो बिल्कुल हाँ ही नहीं, but obviously at that time they were quite new, so it was a very big shock at that time. लेकिन हाँ अब obviously बेहतर हो रहे हैं, अफगानिस्तान भी इस तरह टीम आ रही है आगे। यार अफगानिस्तान की तो बात ही नहीं Afghanistan, I hate Afghanistan with all my heart. I literally नमक यार इतना गुरूर Oh है, my क्या God. बोलूं। अरे वो आपने मैच में देखा कि क्या किया मतलब उन्होंने? मैच में वो बहुत हमारे लोगों को मारना शुरू कर दिया, हमारे फैंस को मारना शुरू कर दिया. अच्छा उनके मैं कह रही हूँ ना वर्ल्ड कप पे जब भी मैं गई हूँ दोनों दफा अफगानी दूसरे टीम के जर्सी खरीदते थे जब पाकिस्तान का मैच होता था, मेरे सामने ही हुआ है लाइक 2 दफा ऑस्ट्रेलिया में भी इंग्लैंड अच्छा में भी। उनके जो क्रिकेट बोर्ड के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने आके कहा कि मैच से पहले कि जो पाकिस्तान अफगानिस्तान का मैच होता है वर्ल्ड कप से पहले, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान शुड लर्न क्रिकेट फ्रॉम अस. अच्छा तो मैं इसमें एक बात कहना चाहता हूँ कि सो हाउ शुड वी लर्न क्रिकेट फ्रॉम यू? let me explain. Allow me to explain. So हमारे पास we are the team, we are the nation that introduced reverse swing to the game of cricket, first of all. Second of all, we have Imran Khan, who is our honorable prime minister now. He is the one who brought neutral empires to the game of cricket. We have been playing since 1950s. Okay, we have test status, we have one-day status, we have a World Cup, we have a T20 World Cup. So how the hell should we learn cricket from you? Like, do you even know how stupid that even sounds? In just like in all honesty. उसके बारे में शोएब अख्तर ने कोई जवाब नहीं दिया था. आई थिंक वो शोएब अख्तर और सम अदर सीजन प्लेयर वाज सेइंग कि अफगानी प्लेयर हमारे पास आते हैं सीखने के लिए, हमने तो सिखाया है. Exactly. Yes. हम ही ने तो उनको सिखाया यार लाइक टीम बना के. आधे से प्लेयर तो पेशावर में बैठे हैं, आधे प्लेयर तो पेशावर से हैं. Yeah. आधे लोगों के पास वो है पाकिस्तानी सिटीजनशिप, और हम ही ने उनको इंजमाम कोच था उनका, हम ही ने उनको सिखाया था लाइक. हाँ नहीं वो छोड़े, if you go a bit back, उन्होंने हमारे फर्स्ट क्लास में खेला है, हमने उनको खिलाया है, लाइक हमने इनकी सेटअप की क्रिकेट, एंड देन और फिर बीच में कह रहे कि हमने इंडिया जाके ट्रेनिंग करनी है. लाइक भाई हम ही ने तुझे सिखाया, अब क्या कर रहे हो? Exactly. बेसिकली इन बीसीसीआई ने पैसे दिए ना, because their home ground is in India. हाँ exactly. वो सारी इंडिया में जाके अफगानिस्तान की ट्रेनिंग होम ग्राउंड है ना, तो वो exactly. अगर वो मतलब अगर आप पॉलिटिक्स को साइड रखें ना, पॉलिटिक्स को अगर आप अलग रखें, तो पाकिस्तान और इंडिया की बड़ी पैशनेट किस्म की राइवलरी है, राइट? लेकिन मैं उसको फिर भी राइवलरी कहूँगा स्पोर्ट्स में. लेकिन ये जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो हुआ ना, ये बेसिकली दुश्मनी हो गई, एंड नॉट फ्रॉम द पाकिस्तानी साइड, मोर फ्रॉम द अफगानी साइड. हाँ उन्हीं के साइड से. पिछली बार ये लड़ाई वगैरह हुई थी. अगर आप पाकिस्तान इंडिया का मैच देखें ना, उसमें कभी फैंस की लड़ाई नहीं होती. Not that I've heard. ऐसे लड़ाई नहीं होती. हाँ ऐसे मतलब लड़ाई ये नहीं तो होती, बकायदा वीडियोस आ रही यूट्यूब पे, ये पाकिस्तान के फैन जा रहे, पाकिस्तान की जर्सी पहन के उसको मुक्के मारना शुरू कर दे, ये वो. और तो ये एक वीडियो नहीं है, 6000 मतलब 6000 तो नहीं, ओवर एग्जैजरेट करता हूँ, लेकिन काफी वीडियोस आई हैं उस स्टेडियम से, वो कुर्सियां फेंक रहे हैं. मैच से पहले भी उन्होंने कहा लाइक पता नहीं हम पाकिस्तान को यूं करेंगे, और ऐसे लाइक इशारा करे थे जैसे किसी को दबा रहे हैं. एग्जैक्टली. लाइक चिल मारो भाई, क्या कुर्सियां फेंक रहे थे और ये वो. आई मीन वो तो शुक्र है कि वो मैच जीत गए, वरना वो इतनी टेंशन. इमाद वसीम का अल्लाह भला करे यार, मेरा तो बीपी हाई हो गया. That would have been more embarrassing than losing to Ireland. That's for sure. I can tell you that. That would have been more embarrassing. Yeah. And remind me if I'm wrong. वो मुश्किल मैच था वो पाकिस्तान के लिए जीतने के लिए, right? मुश्किल. उनकी तो स्पिन ही ऐसी. It was to the wire. उनकी तो स्पिन ही ऐसी थी कि हमारे जो बैट्समैन थे सारे हिल गए, उनको पता समझ ही नहीं आ रहा क्या करें. इमाद वसीम ही ने बचाया था ना. इमाद वसीम ने बचा लिया था, अल्लाह का शुक्र है. वो तो सरफराज आउट हो गया था. अच्छा सरफराज जब खड़ा हुआ था ना, मैंने कहा ये स्पिन अच्छी खेल लेगा, तो ये उसका तो बड़ा मसला नहीं है. लेकिन जब वो आउट हो गया, रन आउट हो गया, फिर इमाद वसीम आ गया, फिर हमारे टेलेंडर ही आ गए थे एंड में.
उन्होंने आके मैच बचा लिया, लेकिन शुक्र है वो जीत गए. Oh my God. और वो आधे से ज्यादा वो 90% स्टेडियम में फैन सारे पाकिस्तानी थे. So जब उसने आखिर में चौका मारा तो it's like the whole stadium exploded and it was a good sight to see, but that match should have not have been that close. It shouldn't have been that close. वो तो उस मैच के बाद there were fights in the crowds and stuff afterwards. वो अफगानी लोग वही था वही. पागल हो गए थे. I'm really wait, disappointed yeah. in Afghanistan. Right, I right. He's literally one of our despise Afghanistan. friends. हमारा भी एक दोस्त था. He got caught up in one. So he said how they're just like randomly attacking people. उनको मारे नहीं पकड़ के. याद नहीं उसने क्या कहा था, लेकिन I remember he said he got caught in the middle of one. अच्छा. Yeah, that's it's unfortunate. Yeah, what can you do? Yeah. Mm-hmm. तो इधर आई गेस बिफोर वी गो बैक टू पीएसएल, मैं एक और सवाल पूछना चाहता हूँ आप लोगों को कि हमारी टीम को मसला क्या है, हम क्यों हारते हैं इंटरनेशनली? यार $1 million क्वेश्चन है. बहुत लंबी एक डिस्कशन हो जाएगी. ओके, इट्स अ सिंपल क्वेश्चन. लाइक क्वेश्चन ये है कि क्या हमारे प्लेयर्स में मसला है इंटरनेशनली? सारी बात ना होती है मेंटल गेम, ठीक है? मतलब people don't think that mental games are important. They all focus on skill. ठीक है? कोहली को देख लें आप, उसको 400 दे दें, वो आपको चेस करके दिखा देगा. मतलब कि जब तक वो वहाँ खड़ा है आपको 500 भी ना कम लगता है. Right. क्योंकि उसके अंदर बिलीफ ही इतना है. Belief is a huge thing in sports. Like this is why people love sports. Why I love sports, because you can change moment, like it can inspire you to like win the game single-handedly, but if you have that belief and confidence, and then you can carry down to your actual life as well outside sports. तो ये चीजें नहीं है हमारे प्लेयर्स. और एक दूसरा मसला ये है कि हम जब अंडर प्रेशर आ जाते हैं ना तो बहुत बड़ा मसला हो जाता है. प्रेशर में तो परफॉर्म ही नहीं कर सकते ना, यही तो मसला है. तो दैट्स द मेन थिंग. वो उनकी शक्ल पे नजर, जब अफगानिस्तान से जब हो रहा था मैच, तो उनकी शक्लों पे नर्वसनेस नजर आ गई थी. पता चल रहा था ये लोग नर्वस हो गए, ठीक है ना? जब वो प्रेशर में आ गए, बुरी टीम, एक बहुत ही बुरी टीम से आप हार रहे हैं, उनसे आप उसका प्रेशर होता है. You can see it in their body language in the matches. जब लगता है ना हमारे परफॉर्म नहीं अच्छे कर रहे होते, या when they know it's a big or high stake match. Yeah, exactly. Unless it's our day, as they say. उनकी body language भी इतनी strong नहीं होती to indicate कि हाँ अच्छा खेलेंगे आज नहीं. मगर वो चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल के कहते हैं, अगर इंडिया ने पहले बैटिंग किया तो 240 मारा होता ना, 350 वाली पिच हमसे नहीं होना. We would have chased it. बिल्कुल. हमें हमेशा बॉलिंग ही जिताती है. पहले भी हमें हमेशा ने बॉलिंग नहीं जिताया है. लाइक ये वसीम और वकार के जमाने में ना, अगर वो कह रहे थे 200 बना लो, हम उतार लेंगे. That's literally what the mentality was back then. So हमेशा बॉलिंग ही जिताती थी हमें. So that's always been our strength. मेरे ख्याल से जब yes. But to be a great team, they have to be all round. Australia the team, Ricky Ponting, Bradley, इतनी great team, इसलिए उन्होंने 5-6 वर्ल्ड कप जीते उस टाइम. ठीक है? इंडिया इज अ वेरी गुड ऑल राउंड टीम. ठीक है? उन लोगों ने एक्नॉलेज किया भी, कहते हैं हमारे पास फास्ट बॉलर नहीं है, उनके पास उमेश यादव आ गया, बुमराह आ गया, ठीक है? भुवनेश्वर कुमार बहुत स्विंग बहुत अच्छी करता है, बस 3-4 आगे कहते हैं 90% बॉलर. अब उनके पास आ गया सैनी, वो भी बहुत तेज बॉल करते हैं. They have started to work on the weaknesses and they've obviously like reached the results that they want. पाकिस्तानी जो वो एक प्रोफेशनल स्पोर्ट की तरह ना ट्रीट करते हैं. हम तो एमी इजी लेते हैं हर चीज को. क्या हो गया, इससे ले लिया, उससे ले लिया, पराठे खा लिए, ये हो गया. ये तो बस गली में इसने 6 मार दिया. ले आओ भाई एकेडमी में जरा से. और सर जी डेल को प्रोटेक्ट कर रहे हैं. भतीजा ये भांजा ये. ये बड़ा मसला होता है कि ये फलां का भतीजा है, आप आज फलां के मिनिस्टर के बेटे हैं. अच्छा आप खेलते, अच्छा आप आ जाए नहीं, अच्छा आपका टैलेंट अच्छा है. लाइक वो याद है इमरान फरद, जो भी इसका नाम था. हां याद है. उसने तो बहुत साल खेला है. उसने कितने कमबैक किए हैं. तरीन मतलब उसे कुछ अलग बहर नहीं आता यार क्रिकेट का. वो एम ही खड़ा है. ये भी बात है. लेकिन I just want to go back to Babar Azam a little bit. I think Babar Azam is the future of Pakistan cricket in terms of batting. I mean बहुत अरसे के बाद, वो तो गिवन सी बात है, लेकिन बहुत अरसे के बाद एक कोई इतना जबरदस्त बैट्समैन निकला है. I mean, when you just watch him play, he's natural. Everything is just so natural. His footwork is natural. The way he plays his shots are natural. Everything is just so natural about Babar Azam. I mean, he is just an absolute joy to watch. और वो अपने काम से काम रखता है ना. किसी एमी लाइक ये नहीं इमामुल हक की तरह स्कैंडल्स में नहीं पड़ रहा है. बस जो उसका काम है वो वही करता है. हाँ, exactly. So he's very professional as well. उसके साथ बस एक मसला होता है कि जब वो उसको इंटरव्यू करने जाते हैं, उसके साथ थोड़ी अंग्रेजी सही नहीं आती, which I think is fine. You can just have a translate. But that's not an issue though. Yeah, Exactly. that's not an issue. आप एक जो रोनाल्डो मेसी है उसको इंग्लिश नहीं आती होगी. जो मेसी है, कौन है मेसी है ना, अर्जेंटीना का जो है, हाँ उसको इंग्लिश नहीं, उसको इंग्लिश नहीं आती. अब मेजॉरिटी फुटबॉलर्स को देख लें, लाइक दे डोंट नो इंग्लिश, लेकिन कुछ जाता नहीं है, दे स्पीक इन देयर लैंग्वेज. तो हम पता नहीं, हम पाकिस्तानी को होता है कि हमारे प्लेयर्स को इंग्लिश बोलनी नहीं आती, व्हिच शुडंट बी द केस. आप ट्रांसलेटर रख लें, रमीज राजा को रख लें सामने, वो ट्रांसलेट कर देगा ज्यादा उसको ना ही बोलेंगे, वो भी बोल देगा. वो उसको इंग्लिश बोलने कितना शौक है, वो कुछ और ही बोल देगा एंड में, कुछ और ही ट्रांसलेट कर देगा. वो अपनी अंग्रेजी दिखाने के लिए कुछ भी कह देगा.
So I want to go back to the Ali Zafar and Ali Azmat की जो पाकिस्तान का जो PSL का जो एंथम है. PSL की बात करते हैं. हाँ, यहाँ पे हुआ क्या था? Like just describe it for the audience. यहाँ पे मसला क्या हुआ? Basically हुआ ये कि अली जफर को मेरे ख्याल से गाना गाना था PSL का एंथम, क्योंकि अली जफर ने पहले भी गाने गाए हुए हैं PSL के, जो एंथम होता है PSL का. इस दफा शायद अली अजमत ने गाना गा लिया, तो फैंस को पसंद नहीं आया था. और आसिम अजहर और उसमें आरिफ लाहौर भी था एंड में. एंड में आता है वो. तो फिर उसने गाना गा लिया, तो फैंस को इतना पसंद नहीं आया. वो मेरे ख्याल से फैंस जो हैं, वो जो एक उर्दू में एक मुहावरा होता है लकीर के फकीर, उनको बस वही चाहिए, अली जफर ही चाहिए उनको बस, लिटरली. तो मेरे ख्याल से फिर फैंस ने कहा कि नहीं, इसमें तो तराने में तो मजा ही नहीं आ रहा, अली जफर क्यों नहीं, अली जफर क्यों नहीं. फिर अली जफर ने फिर से अपना गाना बनाया, जो मेरा लूट लिया था, वो गाना बनाया उन्होंने फिर. तो मेरे ख्याल से basically on like fans requests is literally, I think, well obviously you might have had it prepared, लेकिन दिखाया इस तरह था कि in a few days lyrics को गाना गाया, music video shoot की, सारा रिलीज किया. basically PR था ना, क्योंकि उसका वो जो चल रहा था harassment का चक्कर. तो लिटरली हाँ, यही जो ये आप कह रहे हैं बिल्कुल सही है कि he didn't come up with it in a few days. उसने पहले से प्लान बना रखा था, क्योंकि वो जो डांस कॉम्पिटिशन्स भी चल रहे थे ना कि लाइक LGS डिफेंस के बच्चे ये कर रहे हैं, ये तो पहले से प्लान हुआ था. कोई इस तरह की वीडियोग्राफी नहीं कर सकता 2-3 दिन में. नहीं, ये ज्यादा कह रहे हैं आपको. मैं तो सिंगर, ठीक है. आसिम अली और कहते हैं उसने अली अजमत ने गाना गाया, उनको फिर हिट नहीं हुआ, ठीक है. फिर अली अजमत ने टॉक शो पे जाके बोल दिया, फिर लोगों ने ब्लॉगर हायर किए थे, वो अली जफर को ताना मार रहा था कि इसने बंदे हायर किए थे, ताकि ये लोग कहते हैं दे क्रिटिसाइज आवर वर्क. फीडबैक तो मुझे कभी समझ नहीं आया. इसमें 2-4 चीज़ें इन्वॉल्व थी. कुछ ब्लॉगर्स थे जो कि कुछ एक कोई राइवल आर्टिस्ट कह लें, जिन्होंने ये ब्लॉगर्स एम्प्लॉय किए थे. तो वो काफ़ी कंट्रोवर्सी. आर्टिस्ट कोई वही जिन्होंने पहले भी गाना वाना गाया, जिनको इस साल नहीं लिया गया जी. तो वो कुछ वो बातें कुछ इस तरह की बात कर रहे हैं. मैं किसी की नाम नहीं लेना चाहूँगा, नाम ले लें वरना लोग समझेंगे अली जफर साहब की बात कर रहे हैं. नहीं, मैं उनका बात नहीं कर रहा, और किसकी बात. लेकिन जो भी था वो उसके पीछे अली जफर ने वो ट्विटर पे निकाली थी वीडियो भी, कहते हैं अगर आपकी जिंदगी में कोई मसला है उसके जिम्मेदार मैं हूँ भाई हज़र है. मैं बहुत सार्कास्टिक, ही हैंडल्ड दैट वेरी वेल. अगर आपकी जिंदगी में कोई भी मसला चल रहा है, कोई इज़्दिवाजी मसला, कोई समाजी मसला, कारोबार नहीं चला, गाना नहीं चला, इवेंट नहीं चला, तो उसके जिम्मेदार मैं हूँ. मैं, क्योंकि मैं इतना ताकतवर हूँ. देखें, मेरे पेरोल पे ब्लॉगर्स हैं भाईजान. कैम्ब्रिज एनालिटिका क्या है, ट्रम्प को किसने इलेक्ट करवाया है? भाई ने. उसके बाद उसने I do believe that he did make that song in a week, because totally possible, ठीक है. तो कहते हैं like he didn't do anything extraordinary. कहते हैं उसने लोगों को बोला भी अब डांस करके भेजो, उसने कहते हैं उस सब को कंपाइल कर दिया, and the dance routine that he's following isn't that complicated. उसको 2-3 दिन लग गए उसको. So I do think that कहते हैं he did got that in 1 week. लेकिन at the same time he didn't have to do, you know, he should have been supporting his fellow artists by like saying that कहते हैं उन लोगों ने भी अच्छा गाया है, rather than going out there out of the way of funding yourself. इसकी कहते हैं pros and cons. You can like interpret this or like analyze this both ways. उसने भी तो गलत बात की थी ना, उसको पता नहीं. वसीम बदामी ने बेसिकली चक्कर चलाया था ना वो बुला के. उसके फड्डे बहुत होते हैं अली अजमत के. हर अगले आर्टिस्ट के साथ फड्डे होते हैं. वो शक्ल से लगता है फड्डेबाज है. जी, वो है लॉरी, उसने मारी इतनी झुकते हैं, ठीक है. उसने मारी इतनी झुकते हैं. By the way, मैं वीडियो को देख रहा हूँ अभी. तैयार, गाने का नाम है तैयार हैं, राइट? तैयार हैं, हाँ. So on YouTube it has 118,000 upvotes and 91,000 downvotes, जो कि मेरे ख्याल में honestly मैं अली जफर का बहुत बड़ा फैन हूँ. I like अली जफर better actually as an artist. I listen to a lot of his songs. लेकिन इस like honestly this song was actually not that bad at all. तैयार हैं, मुझे तो अच्छा लगा था, जोश वाला गाना था. और अली जफर का भी अच्छा था, लेकिन I felt like तैयार हैं, उन्होंने एक बार anthem set कर लिया. It just felt like the more right song for this year. Because thing is, they're basically comparing it to the previous years. Obviously, Ali Zafar ने पिछले साल गाया था, उससे पिछले साल. So they're taking that as like the template. So obviously, जो गाना था उसका था, it was really good. Obviously, in comparison to that, उन लोगों को नहीं पसंद आया. So some people obviously went a bit extreme, but is. Which song was that, by the way, last year? जिसको याद भी नहीं आ रहा है सब यार. एक तो वो था ना, खेल जमेगा. वही था खेल जमेगा. सीटें बजेगी. Yeah, that was a catchy song. लेकिन कहते हैं in all fairness, you know, Ali Azmat did come out and he said, you know, कहते हैं हम सबको साथ करना चाहिए. और उसने कहते हैं आगे he kind of did जो उसने कहते हैं बोला था उसके खिलाफ, he kind of took it back. तो कहते हैं वो सब सेट हो गया था. और कहते हैं जहाँ तक बात रही कहते हैं
आसिम अजहर को यूज करने की उसको क्यों यूज कर रहे हैं? आपको आतिफ असलम पड़ा है, आतिफ असलम मतलब कि अल्लाह ताला ने ब्लेसिंग दी है पाकिस्तान को, उसको अभी तक यूज नहीं किया मैंने PSL। मैं डिसअपॉइंटेड। हालांकि मेरे ख्याल से तैयार हैं जो है वो इतना बुरा गाना नहीं था। I don't know why people were so complaining about it. It wasn't as bad as people made out to be, no doubt. इतना बुरा नहीं था people were making out to be. मेरा लूट लिया भी सही है, it's good, but I like तैयार हैं too. It wasn't that bad. Yeah, I'll be honest, I blasted my car. तैयार है ना, तैयार है। जब वो सुबह काम पे जा रहा होता हूँ, सुबह काम पे जा रहा हूँ, तैयार है, तैयार हूँ। Yeah, that's how I go to work. लेकिन आजकल तो काम पे भी नहीं जा रहा खैर। हाँ वो तो खैर एक। अबे यार वो तो याद ही नहीं रहा। मेरा यूनी सब खराब। अच्छा, back to PSL. अच्छा, ओपनिंग सेरेमनी जो PSL की भी ओपनिंग सेरेमनी देखी थी, बहुत ही बड़ी ब्लंडर मार दी उन्होंने, पता नहीं क्या कर दिया PSL के ऊपर। हाँ, आवाज ही नहीं आ रही थी लोगों को, ये क्या सीन था, पता नहीं क्या हो गया ओपनिंग सेरेमनी के साथ। वो अब आयमा बेग आ रही हैं, वो कुछ गा रही हैं, स्पीकर पे कुछ आवाज सुनाई दे रही है, सजाद अली भी आ रहे हैं, वो पता नहीं क्या हो रहा है, जो तमाशाई बैठे हुए हैं उनको पता ही नहीं क्या करना है, वो पता नहीं सारे लिप सिंगिंग हो रही है और पता नहीं क्या हो रहा है। वो जस्ट अ कंप्लीटली फेलियर। और मैच जो था ना, वो मैच 2 घंटे मेरे ख्याल से आधे घंटे या 1 घंटा लेट शुरू हुआ है, क्योंकि उसको जल्दी शुरू होना था। तो मेरे ख्याल से जो कोऑर्डिनेशन थी इसमें थोड़ी बेहतर हो सकती थी, और पता नहीं इन्होंने बताया, I don't know how who did the planning on this, but it could have been just much better, but I don't know how do you guys think it can be much better. मेरे ख्याल से दुबई में जो ओपनिंग सेरेमनी होती थी वो इतनी बुरी भी नहीं थी। ये नहीं सुना कि बहुत ही बुरी ओपनिंग सेरेमनी है, बस मुनासिब थी, इस मुनासिब, इतना कोई मतलब मसला भी नहीं होता इसमें। तो पता नहीं, I think that the only way that I think they can make it better is that they have better coordination, make sure the sound system is working, do some sound testing, live testing, practice. क्योंकि यहाँ की सुपर बॉल की सेरेमनीज जो होती है ना, सुपर बॉल की जो सेरेमनीज होती है उसमें तो बकायदा रिहर्स करते हैं वगैरह। A lot of rehearsal, right? Yeah, a lot of rehearsal होती हैं, तो वो तो it's the most watched event in the US, so they have to get it right. Exactly, तो पूरे नॉर्थ अमेरिका में सारे नॉर्थ अमेरिका देख रहे हैं, तो रिहर्सल तो चलती रहती हैं। तो मेरे ख्याल से मैंने सेरेमनी देखी नहीं थी, पर लोग उसको काफी ब्लेम कर रहे थे, because I saw on Twitter afterwards, वो जो हमारा कोई होस्ट था, I think he was getting a lot of hate. पत्नी apology की फिर बाद में, but then ना फर्क यार एक और था। मैंने सेरेमनी देखी नहीं, because I was at work, लेकिन जो VJ है, यंग सा था, हाँ, उसको बहुत हेट मिल रहा था उसको, और like he came on TV shows afterwards saying कि हाँ मुझे बहुत हेट मिल रहा है। And then he released a video जिसमें उसने बहुत कुछ कहा है, फिर उस वीडियो के जवाब में PCB ने उससे कुछ कहा था। Like it escalated into this whole drama, लेकिन मुझे उस बंदे के याद ही नाम नहीं आ रहा ना। नहीं, उसने कहा था भी अली जफर के गाने मैं नहीं लगाऊंगा, या फिर उसने कुछ बाद में I think he said अहमद गोदिल उसका नाम है। अहमद गोदिल। I don't know this guy. अच्छा, that's interesting. नहीं, या फिर he somehow contradicted PCB's ethics and values, and then he came out. But the thing is, I don't know how bad it was in the first place because I didn't watch it, but from what I saw online, he was getting abused a lot. लोग तो उसके खानदान पे आ गए यार, like they were like, ओ तुम्हारा पता नहीं ये अजीब, like जैसे होते हैं पाकिस्तानी मजाक को और ही ले जाते हैं आगे। Obviously he was probably following a script anyway, but like he wasn't like doing impromptu stuff, so I think it was a bit too far in that sense. Yeah, no, I think that the opening ceremony can be much better. I think मेरे ख्याल से पहली दफा पाकिस्तान के स्टेडियम में हुई है, तो शायद इनको थोड़ा आइडिया नहीं है, but I think they just need they need to rehearse, and they just need better coordination. I think that's the only way it acts. और वो साउंड का भी मसला था ना स्टेडियम में, कि जो ऑडियंस में थे वो कह रहे थे कि हमें आवाज नहीं आ रही, और जो रिकॉर्डिंग आ रही है वो लोग कह रहे कि हमें आवाज नहीं आ रही, पता नहीं किसको आ रही थी आवाज। हम तो टीवी में देख रहे हैं, हमें भी थोड़ा आवाज का मसला नजर आ रहा है, तो जो ऑडियंस में बैठे हुए होंगे नेशनल स्टेडियम में, वो पता नहीं उनको क्या सुनाई दे रही होगी, क्या नहीं सुनाई दे रही होगी। So I mean, yeah, the opening ceremony can definitely be better. That's for sure. Yeah. इससे याद है कि हर बार जब ऐसे कुछ इवेंट्स होते हैं ना, स्पोर्टिंग इवेंट्स, कोई ना कोई सेलिब्रिटी, लाइक फैंस में से कोई सेलिब्रिटी बन जाता है। इस बार सबसे ज़्यादा मुझे जो बच्चा याद आ रहा है ना, वो बच्चा जो लाहौर कलंदर्स के लिए रो रहा था। हाँ, फिर वो मैच पे भी चला गया था शाहीन के साथ। हाँ, फिर हर मैच में इसको लेके आ रहे थे, उसको प्लेयर्स के साथ मिला रहे थे, and all that stuff. तू छोड़ लाहौर कलंदर को, दफा कर, तू मुल्तान में आ जा। क्यों आऊं मैं मुल्तान में जब हमारी टीम भी वो वाली है? यार आप रहते वहाँ पे, यहाँ पे हो ना, आपकी टीम बनती वो वाली है, मुल्तान वाली है। यार पाकिस्तान हो तो उन्हें जगह मारने में, ये वो फखर से मारने, क्या जगह मारे, 1-2 जगह मार के आउट हो गया। अफरीदी ने भी जगह उसे पिछली दफा खिलाया है नहीं,
मारो लाहौर कलंदर को, मैं पाकिस्तान की तरफ हूँ, जिंदाबाद। वो भी पाकिस्तान का है। And last year was Momin Saqib. अबे वो पागल है यार। That whole clip. I gotta admit, I found that really funny. कसम वाली बात मैं आपको बताऊं, मुझे पता चला कल रात ये लोग बर्गर खाते रहे हैं, कल रात ये लोग पिज़्ज़े खाते रहे हैं। इन्होंने क्रिकेट छुड़ाओ तो दंगल लड़वाओ, इनसे कहो दंगल लड़े, मतलब कोई फिटनेस कोई कुछ नहीं। यहाँ पे हम लोग इनसे इतनी उम्मीदें बना के बैठे हैं, तो इन्होंने बर्गर खवाओ, इन्होंने लैके जो लाहौर उत्थे पराठे खवाओ, कढ़ाइयाँ खवाओ, इन्हों दे ढिड्ड एडे वड्डे कराओ। मैं उससे असल में मिले भी हूँ। ही इज लिटरली उफ, खैर छोड़ो। हद है। वो इस बार भी आया हुआ था पाकिस्तान एक्चुअली। He came to Pakistan just to speak, I guess, for उसके यार क्योंकि वो रहता यूके में है। वो पाकिस्तान में वो तीनों बहन भाई यूके में एक वो उसके वीडियोस बनाते रहते हैं सारे इवेंट्स पे जाके। उसका बड़ा भी वो एक्टिंग करता है, मतलब कि प्रो बिलाल। हाँ वो तो वैसे साथ लगा होता है ना, इसलिए they've got this charity going on for I think people in rural areas to transfer or like transport some sort of वो पानी को लेके जाना होता है लोगों ने some sort of wheel के अंदर, so that's a good cause. he is using his what's it called, like fame, like well in that sense. मतलब ये नहीं कि वो सिर्फ ऐसी शुगर लगा रहा है, like he is trying to make use of his platform and the number of followers that he has. उसे एंकर बनने का शौक है जो असल में है उसको। आजकल के दौर में तो पता नहीं कौन कौन क्या क्या बन जाते हैं इंस्टाग्राम की वजह से, यूट्यूब की वजह से। हाँ इन्फ्लुएंसर पता नहीं क्या, कोई मतलब आप सही काम करे ये क्या कर रहे हो इन्फ्लुएंसर। सही बात है। लोग तो यूट्यूबर बन जाते हैं आजकल, यूट्यूब बन जाते हैं ये अच्छे भले पैसे बना लेते हैं, राइट। जैसे शोएब अख्तर को देख लो, शोएब अख्तर के मिलियन सब्सक्राइबर हो चुके हैं उसके ऊपर। Yeah, although Shoaib Akhtar was already made before that, लेकिन हाँ एक और उसको revenue source, income source मिल गया। So you know it's good. शोएब अख्तर ने वो जो मैंने उस वीडियो पे कमेंट भी किया, जो ये पीछे कोरोना वायरस पे उसने पूरी वीडियो निकाली कि चाइनीज लोग ये क्यों खाते हैं यार, कोई बंदे वाले काम करो, सांप खा रहे हो, चमगादड़ खा रहे हो, इसके किस्म की बातें। People were very offended by that actually, which I mean थोड़ी insensitive उसने बात की है। I think he could have worded it better. Yeah, exactly right. मतलब गलत ठीक है ना, आप चमगादड़ खा क्यों रहे हैं भाई? Exactly. I mean he needs to हाँ लेकिन हर बात कहने का तरीका भी होता है ना। शायद and he's like a celebrity, is known to just say things as they are, which has gotten problems in his career as well. Yeah, you could tell he was upset. जज्बाती कौम है ना, सारे जज्बाती हैं, even our जज्बाती बहुत हैं, जज्बाती बहुत हैं। They don't know how to say things a little diplomatically. So there's a शोएब अख्तर तो बिल्कुल भी नहीं। Exactly. So वो पिंडी बॉय है, राजा जी पिंडी बॉय। पिंडी बॉय। No holding back. पिंडी बॉय से याद आया कि should there be more teams in PSL? That's another question. यार पिंडी वो फैसलाबाद की टीम ले आया, मैं कह रही हूँ। रावलपिंडी एक्सप्रेस। The thing is, if there are more teams, ज्यादा लंबी हो जाएगी PSL। हाँ वो 2-3 महीने PSL ज्यादा लंबी हो जाएगी। 2-3 महीने की हो जाएगी। फिर अगर 10 टीम, मेरे ख्याल से 10 टीमें आराम से हो सकती हैं अगर आप देखा जाए तो। फैसलाबाद की टीम यार नहीं यार, देखें आप टीम्स फॉर द सेक ऑफ सिटीज ना करें ना। जैसे IPL में देखें, there are 10 teams, but IPL is so long, बंदा यार इंटरेस्ट लूज कर लेता है बीच में। इस टाइम IPL में 8 टीमें हैं और इंडिया काफी बड़ा मुल्क है, so that's I'm surprised they only have 8 teams. Even the Big Bash in Australia, वो भी it goes on for a long time. मेरे ख्याल से 8 टीमें तो हो सकती हैं। You can have at least 8 teams. मेरे ख्याल से 2 और टीमें और ऐड कर दो, एक उनको दे दो, एक फैसलाबाद की हो जाए टीम, एक ठीक है ना, फैसलाबाद की हो जाए टीम, फिर आप एक वजीरिस्तान की टीम बना लें। 8 टीमें हो गई। और इवन नंबर्स ऑफ टीम्स होनी चाहिए। मेरे ख्याल से जो मतलब मेरे ख्याल से पंजाब की तो खैर 3 टीमें हो गई, से लाहौर, मुल्तान और फैसलाबाद। अगर फैसलाबाद की टीम बनती है तो वो हैदराबाद सिंध की भी बात कर रहे थे, हैदराबाद सिंध की भी टीम हो सकती है। तो टीमें तो बहुत हो सकती हैं, लेकिन मसला इसमें यही होता है कि बहुत सियालकोट स्टैलियंस को वापस लाओ। मैं सियालकोट स्टैलियंस भी तो है। हाँ एग्जैक्टली, हाँ ये भी याद है। लेकिन अगर बहुत सारे पंजाब की टीम्स बनेंगे तो सिंध का भी वो एक और बना ले। पंजाब बहुत हो गया है। सिंध का और कौन सा हो सकता है? हैदराबाद यार कायम अली शाह को कहें कि स्पॉन्सर बने, कोई सुक्कर इस तरह कोई चीज, शक्कर डायनासोर टाइप सीन हो। और बिलावल भुट्टी को लगा देते हैं जब बारिश होती है। नवाब शाह की कोई टीम बना, कुछ तो बन जाए। हाँ शहर तो खैर बहुत हैं, लेकिन वो मसला ये था कि वो जो टूर्नामेंट है वो काफी लंबी हो जाएगी। हाँ नहीं तो ICC के इवेंट्स में no but I do agree टीम ज्यादा हो ताकि प्लेयर्स आए, because there's one thing in PSL जो भी आजकल हो रहा है। देखिए आपके पास सारे जो प्लेयर्स हैं, फॉर एग्जांपल सोहेल तनवीर, कामरान अकमल वगैरह, obviously PSL is still a business and entertainment, so they're still playing, but essentially they're taking a spot for someone else
who could come into Pakistan's cricket team. हम्म जिनका future नहीं है ना basically Pakistan में as an international star. But at the same time, obviously, the franchises want like business. They want teams to win. I think 8 teams is a max. उससे ज़्यादा तो बहुत मतलब unnecessary हो जाए. हाँ मेरे ख्याल से 8 होनी चाहिए. At least there should be at least 8. हाँ 8 मेरे ख्याल में परफेक्ट नंबर है क्योंकि 4 टीम्स ने जाना होता है सेमीफाइनल्स में, राइट? तो अगर आपके पास 8 टीम्स हो तो 4 पीछे रह जाएंगी, 4 आगे चली जाएंगी. इट्स अ परफेक्ट बैलेंस आई थिंक. 4 आगे चले जाएंगे एग्जैक्टली. राइट, इट्स विल बी मोर इंटरेस्टिंग दैट वे. इट विल मेक द प्लेऑफ्स मोर इंटरेस्टिंग. अभी 6 टीम्स के साथ ठीक है, लेकिन कभी ऐसा होता है ये टीम जीत रही है, इस्लामाबाद जीत रही है, इस्लामाबाद हार रही है, एंड देन ओनली 2 टीम्स गेट लेफ्ट बिहाइंड. अगर 4 पीछे रह जाए ना, देन इट मेक्स इवन द प्लेऑफ्स मोर इंटरेस्टिंग. हाँ, और अभी भी इट्स लाइक एक ही टीम लाइक मुसलसल खेली जा रही 2-3 दिन तक, तो 8 टीम हो तो ब्रेक भी हो जाता है बीच में. हाँ एग्जैक्टली. That would probably expand the tournament for like another 2-3 weeks, I would say. Another month probably, right? मेरे ख्याल से एक महीना तो लाजिम एक्सटेंड होना है. महीना हो जाएगा. तो ऐसे भी यार अगर कोरोना वायरस का मसला ना हो तो हम देखने वाले बैठे हुए हैं. हम 2-3 हफ्ते और देख लेंगे क्या मसला है. एग्जैक्टली क्या मसला है हमारे लिए क्या. क्रिकेट देखने में कोई मरा नहीं अभी तक. मतलब आई थिंक एक्चुअली टेक्निकली मर चुके हैं इंडिया पाकिस्तान मैच में, बट वो तो अलग बात है. हाँ कुछ हार्ट अटैक्स तो जरूर हुए होंगे. I'm sure. हाँ एग्जैक्ट. वो शारजा का मैच जो था, शारजा का मैच बहुत पहले होता है 87 में, लेकिन मेरे अब्बू बताते हैं कि वो that was like जब मियां ने जो छक्का मार दिया ना इंडिया के खिलाफ, like people actually had heart attacks during that game. So it's crazy. और मतलब होता होगा कुछ लोग दिल के कमजोर होते हैं, वो मैच नहीं देख सकते. So I'm sure it probably happened, especially if उस game के लिहाज से the monumental game that is Pakistan versus India. I would say those are the 3 best words in cricket is Pakistan versus India, hands down. And I don't think there's a way you can Agora from like North America can understand that rivalry, because you have to know the culture, you have to know the history between the two countries, and what we've actually gone through. So I think there's no other way you can understand that rivalry. I think it just outbeats every single rivalry in sports. क्योंकि यूएस में rivalry है भी नहीं ना इतनी कोई, मतलब दूसरे मुल्कों के साथ. There's only like inter-US rivalry like Red Sox versus Yankees. Right. तो वो हम बाहर गए like कनाडा के साथ, हमारी कनाडा के साथ rivalry है hockey में, ice hockey, but that's about it. The people here don't really understand global sports that much. शायद वो रशिया के साथ भी थोड़ी बहुत होती है इन लोगों की. रशिया के साथ भी थी, लेकिन रशिया के साथ इनका कभी ऐसा कोई गेम नहीं हुआ कि वो जैसे वो लोग सब पागल हो रहे हैं. Exactly. Yeah. So that's what it is. I guess next question it goes back to जो हसन बोल रहा था कि like we need to produce more talent. इस PSL में मैं पूछना चाहता हूँ, वाकई मेरी तरफ से क्वेश्चन है क्योंकि मुझे नहीं पता. हमने familiar faces तो देखी हैं, राइट? मोहम्मद आमिर, शाहीन अफरीदी, बाबर आजम, लेकिन कोई नए बंदे कुछ ऐसे हैं जो like we haven't seen them much before but they performed really well. नहीं, सिर्फ कहते हैदर अली is the only guy that stands out. हैदर अली. I've got criticism for this PSL. ठीक है, पिछले साल पेशावर ज़ल्मी के पास एक लेग स्पिन खेला था, एहतिशाम नाम था बंदे का, और काफी यंग सा बंदा था. एनिक पैन के वो खेला था, काफी मीम जॉय बनी थी. इस साल उसको क्यों नहीं खिलाया गया? क्योंकि अगर आप यंग प्लेयर को एक PSL में खिलाते हैं, surely that's a start to something new. How can you just suddenly drop him? He wasn't even in the squad. So that was quite मेरे ख्याल से इस साल PSL को लोगों ने they shifted it towards making the international players happy. That's what I felt like. कहते हैं लाहौर कलंदर्स के अंदर 4 या 5 इंटरनेशनल प्लेयर्स खेले थे. That shouldn't be the case. कहते हैं अगर इस पाकिस्तान सुपर लीग लाहौर की पूरी टीम ही the whole team's success this year was the Ben Dunk. By Ben Dunk, yeah, exactly. लाहौर का अपना टैलेंट कौन था? IPL के अंदर सिर्फ आपको 3 इंटरनेशनल प्लेयर्स अलाउड है, and that kind of forces Indian players to step up. take responsibility. यहाँ पे नहीं हो रहा. यहाँ पे PSL में कितने अलाउड है इंटरनेशनल प्लेयर्स? 4 प्लेयर अलाउड है ना. Sorry, 4 overseas 4 overseas players. Overseas 4, IPL में 3. IPL में भी 4 है bro. 4 है. I'm sure all these leagues have a standard thing 4 अलाउड होते हैं. मैं बात करता हूँ गंगोली से 3 करता है. ये क्या कहते हैं, नहीं वैसे कहते हैं, like seriously speaking, like I felt like Pakistani players were kind of relying on international players. For example, लाहौर कलंदर का कौन आजकल बना हुआ था यार, कौन था कैप्टन? सोहेल अख्तर. वो ओपन करता था, ठीक है, मतलब he was constantly playing at a really slow strike rate, waiting for Ben Dunk or any of those to like tee off. ठीक है, कहते हैं Ben Dunk
that kind of puts extra pressure on those international players as well. वो कहते हैं shot मारते हैं out हो जाते हैं फिर all of a sudden you got a batting collapse. So no one from Pakistani side was really taking responsibility. But the thing is, Lahore Qalandars is different to other sides, which is why they're always lacking. Is जो हमारे local players हैं Lahore Qalandars की team में, वो कोई इतने खास नहीं है compared to all the other teams. हाँ सही बात है. उसमें फिर होता है कि we over rely on all these international players in the Lahore team, whereas बाकी team में देखो सारे जो मैं इस टाइम देख रहा हूँ कराची स्क्वाड में देख रहा हूँ ठीक है मुझे I don't like no one from these batsmen stands out. Shajil Khan was a flop as well. Like, नहीं मैं कह रहा हूँ they're a bit recognized. हमारे लाहौर की टीम में like कोई नाम है जो तुम सुनते भी नहीं हो कौन थे. This year they're still a bit better. Obviously last year ज़्यादा बुरा हाल था लेकिन हाँ. लेकिन ज़्यादातर जो players जो foreign players उन्होंने सारी सेंचुरीज मारी. रूसो ने मुल्तान के लिए मारी थी. बेंटक ने 12 छक्के मार लिए. ठीक है मैं उसके 100 हुए थे या मेरे ख्याल से वो 1990 कुछ हुए थे उसके उस गेम में. नहीं 99 हुआ था. तो ज़्यादातर foreign players ही मारे सब with the exception of Babar Azam. I don't think there's any other Pakistani batsman I would say that actually performed at a level. I mean you could say Fakhar Zaman. जैसे Fakhar Zaman के साथ ये है कि after that Champions Trophy century उसके बाद like has he even done anything productive after that? बस हो गया ना बस एक century मार ली टीम की. मलिक ने थोड़ा बहुत कर लिया था मेरे ख्याल से. Like Malik was a time आ गया Malik को फायदा नहीं. He should not, but you acknowledge Malik should have performed better in that World Cup. Malik should have performed better in that World Cup. He did not perform in that World Cup as he's supposed to. Oh, World Cup में तो खैर सवाल ही पैदा नहीं होता. सवाल ही पैदा नहीं होता. Right. And I don't think he's ever coming back to the international team, the one-day team. मलिक और हफीज को उनको बस बंद कराना चाहिए international में. Which is surprising because those are the two most experienced players right now, and they're not performing based on that experience. हफीज वही करता है ना वो जो आप लोग कह रहे हैं गलत शॉट मतलब आप 18-19 बॉल्स खा के आप फिर शॉट मार के आप आउट हो रहे हैं. हाँ exactly. That's what frustrates me the most. ये हफीज ने कोई अभी recently तो नहीं disappoint करना शुरू किया. I think it's been the case for years and years. मैं तो क्रिकेट दरमियान में इतना देखता ही नहीं. और अगली बार मैं देखता हूँ कोई वर्ल्ड कप आ गया कोई T20 का वर्ल्ड कप हर साल कुछ ना कुछ एशिया कप इस तरह की चीजें होती हैं. मैं देखता हूँ मैं इस बंदे को अभी तक इन्होंने रखा हुआ यार इसको कब निकालेंगे. वो कैप्टन है. Every year he's not that impressive. कभी सेंचुरी मार देता है खुश हो जाता है चलो ठीक कुछ कर देता है. I guess that's his justification to stay in the team. Even World Cup में भी याद है उसने इंग्लैंड के खिलाफ अच्छा खेला था और उसके बाद बस डाउनहिल. Yeah. वो कैप्टन रह चुका है by the way Hafiz. Hafiz was captain. He also has like the most I think man of the match awards or something for Pakistan. नहीं एक ज़माने में तो खैर बहुत अच्छा था like in 2004-2005 when he actually started he was actually really good. हाँ जब उसके लंबे बाल थे ओए मुझे याद है. लंबे बाल थे yeah he was great. I think उसका जो peak आया था जब when Misbah came into captain and he brought him back into the team तब उसका peak आया था when he started because he opened the batting opened the bowling. And Misbah के साथ भी है कि Misbah actually was actually out of cricket for like out of Pakistan cricket for like quite a while. He played in like 2004-2005 लेकिन फिर उसको काफी लंबी देर उन्होंने बाहर रखा उसको. And Misbah की काफी उम्र है he's like 40 something years old but he maintains that fitness pretty well. काफी fit रखता है अपने आप को. वो यूनिस खान बहुत fit रहते हैं वैसे जो बात है. बहुत fit रहते हैं. And I think Misbah was he just I think the way he came up during that T20 World Cup and he had that downfall of that sweep shot गलत खेल लिया उसने and then he kind of led that team he kind of led that team. We were the number one test team again with him and काफी number one test team रह चुकी है और T20 में भी काफी अच्छी performance दी थी हमने और World Cup भी काफी अच्छा खेला था but the only problem with Misbah was tuk. He was always Mr. Tuk. लेकिन उस वक्त पे वो क्या करता है यार बेचारा कोई बैट ही नहीं कर रहा है. उसको जरूरत थी यार. Exactly अगर वो ना करता तो हमारी और ही बुरी हालत होती. 2011 का वर्ल्ड कप तो वो था ना क्रीज के ऊपर. Was he was right. He was there I think from the 2011 World Cup इंडिया के खिलाफ जो हुआ था. When we lost against India, yeah, he was one of the final batsmen. I think he stood the longest. I think, yeah. He stood the longest. Yeah, he stood the longest there. But he wasn't aggressive. That's the thing. He should have been more aggressive in those. और उस साल मेरे ख्याल में हमारी टीम काफी अच्छी फॉर्म में थी. I was actually pretty happy with the way they were performing. लेकिन इंडिया के खिलाफ फिर वही प्रेशर के नीचे दब जाते हैं. वो तो मेंटल गेम है यार इतने फ्रीक आउट हो जाते हैं. I mean, we won against Australia, I think, that year. We won against England. We did really well. Exactly. The only highlight the past decade was Champions Trophy. I would say. That was probably the only highlight. नहीं इस वर्ल्ड कप पे ने जो असल बात है एंड पे जो हमने खेला था हमने बहुत अच्छा खेला था. It was just too little too late. Exactly. It was a little too late.
नहीं अगर वेस्ट इंडीज के खिलाफ अगर आप एक मुनासिब तरीके से हारते हैं ना, वो तो पता नहीं सारे लग रहे हैं हंग ओवर होके खेल रहे हैं, पता नहीं है 100 रन पे आउट हो गए यार, कम ऑन यार, 100 रन पे आउट हो गए, और वेस्ट इंडीज की वो सिर्फ that was the only game that they won. It's not like they were a good team or anything. You just choked against them. That's pretty much what happened. Just choked. And you just scored 100 runs and 100 रन क्या होते हैं वनडे में? आजकल तो वनडे में 400 रन बन रहे होते हैं वनडे इंटरनेशनल। और मजे की बात ये है कि पाकिस्तान पहले आके ओडीआई सीरीज इंग्लैंड के साथ खेल चुका था 5 मैच। हाँ हमारी प्रिपरेशन सबसे ज्यादा थी अगर देखी जाए, फिर भी अजीब। सही बात है, सही। So what do you guys think is what's your favorite cricket format? Test. Out of all the 3 formats. Test match. Test का अलग मजा है। I love Test cricket. I would probably have to say one day, because one day is like a mixture. It's like a mixture of T20. It's like a mixture of Test cricket as well, because you have that. Yeah, right. I was going to say one day as well. One day के first 5 overs are very exciting. One day के first 5 overs it's like equal competition between a bowler and a batsman, because the ball swinging loads and the batsman trying to survive at the same time, score runs as well in the power play. Right. So वो first 5-6 overs बहुत जबरदस्त होते हैं। और आखिरी 10 Yeah. So I think one day balanced भी है, और like because it's a middle format, right? और वो ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, so even the casual players, casual watchers can enjoy it. मेरे ख्याल में टेस्ट का ये मसला कि आपके जो कैजुअल ऑडियंस हैं वो नहीं देखते, लाइक वो क्रिकेट फैनेटिक्स ऑब्वियसली देखेंगे, मैं खुद नहीं देखता। I mean मैं क्रिकेट के स्कोर्स फॉलो करता हूँ टेस्ट मैचेस के, लेकिन कई बार I'll be at work or something, I don't have time to watch a test match. Although इस साल के टेस्ट सीरीज बहुत अच्छे हैं, मैं रेकमेंड करूँगी श्रीलंका और साउथ अफ्रीका का, इंग्लैंड का, जिसका लाइक पूरे साल बहुत अच्छे हुए हैं मेरे ख्याल से। People say Test cricket is dying out. I don't think so. Test cricket will always be there. Because ICC सपोर्ट ही नहीं करती यार, वो T20 में सारे पैसे डाल रहे, आप जरा से सपोर्ट दे तो लाइक हो सकता है सही। But that's the thing, that they see the potential with T20. The T20 they're saying could be in the Olympics because it's a shortened format. Olympics में इसको डाल सकते हैं अगर ये कोशिश करें, लेकिन मेरे ख्याल से हाँ तो लाइक आप दोनों चीजें कर ले, लाइक यू डोंट हैव टू, इट्स नॉट कि एक को गोली मार के सारे पैसे आप एक में डाल दें। लाइक आई थिंक दिस टेस्ट चैंपियनशिप इज अ गुड स्टेप इन द राइट डायरेक्शन टेस्ट को जिंदा रखने के लिए, लेकिन फिर भी नहीं जो सी थ्रिल टेस्ट में वो किसी नहीं, पता नहीं किसी ने यहाँ पे एशेस के अंदर पिछले साल देखा कि नहीं, जब कहते बेन स्टोक्स he was with the last man थी, और वो चीज आपको T20 में नहीं मिल सकती है कि against all the odds, he went against all the odds. Yeah, exactly. उसने वो किया। It's the 4 things in a test match when you're either trying to save the match or you're actually going towards the win. जो वो situation होती है ना, if you're like a proper test match fan, like you'll enjoy that moment. Kind of like what I said in the beginning, जो draw भी हो जाए ना उसमें भी मजा आता है, like draw होने का भी अपना मजा होता है। Like if you're about to lose the game, अगर आप हारने वाले और आप एकदम से draw कर ले मैच को, that's like a win in itself, you know? I mean, there's just so much to think about टेस्ट में कि आपने कब क्या करना है किस तरह से। Yeah, I love Test cricket. I'm gonna have to go with one day because I think it's a good balance of T20 and Test. But Test cricket is definitely one of the best. It is a great format. And I think if I always say this, if you're a real cricket fan, you would watch Test cricket. It's simple as that. So Hamza, did you know कि America के पास भी है actually national cricket team? I was looking it up before. They do have a national cricket team. वो बैन होती रहती है मेरे ख्याल से। हाँ उसमें सारे इंडियन बैठे हैं मेरे ख्याल से। हाँ सारे हाँ वही ना, अगला बंदा इंडियन है इसमें। I think they've got one Pakistani bowler जिसने CPL भी खेला हुआ है। I can't remember his name. I think he's kind of cute actually, if I remember. Actually मजे की बात ये है कि जो मैं मायामी में रहता हूँ, तो मायामी में एक्चुअली मतलब ICC सर्टिफाइड क्रिकेट स्टेडियम है। तो जब 2007 का वर्ल्ड कप हुआ था वह वेस्ट इंडीज में हुआ था, तो मायामी और वेस्ट इंडीज ज्यादा दूर नहीं है, 1 घंटे की फ्लाइट होगी यहाँ से। फोर्ट लॉडरडेल आते हैं ना लोग खेलने। हाँ फोर्ट लॉडरडेल आते हैं लोग, एग्जैक्टली। मायामी से वो 1 घंटा दूर है। तो वहाँ पे तो मैं जब 2007 का वर्ल्ड कप हुआ था तो वो कंसिडर कर रहे थे उसको एक वेन्यू बनाने का, लेकिन उसके साथ मसला ये था कि उसकी लाइटें जो थी वो इतनी मतलब द लाइट्स वर नॉट ICC स्टैंडर्ड, so that's why they didn't do it. And what do you guys think T20 cricket is good for the game? What do you guys think about that? The thing is, it depends on each player how they like switch between. So like the temperament. So Kohli, for example, is like really good at that. I think ODI or T20 in the same खेलता है, टेस्ट के अंदर his temperament is class. And जहाँ तक कहते हैं लोगों को attract करने की बात, I think T20 does attract people.
and it's I think improving the game. Like I think log they're playing more aggressive cricket, which is always good to see. Attacking cricket, attacking sport is always like really good to see. You know, so, scoop shots are again, and the fact that like you can't keep blocking and then you have to eventually attack back, so counter attack or tactics bhi nahi aa rahe. So I think it's good overall. I think it's heading the right direction. I think the one thing is that in T20 में आपकी skills इतनी शायद इतनी अच्छी तरीके से टेस्ट नहीं होती as compared to one day and test cricket. तुक्का ही है, मतलब एक लपाड़ू आ जाए उसने 12 छक्के मार दिए जैसे बेंटंक, वो आप जीत जाएंगे. वो एक ही बंदा चाहिए होता है, आप आपके 200 रन बन जाएंगे अगर एक लपाड़ू आ गया फखर जमान जैसा या बेंटंक जैसा या शर्जील जैसा, वो 200 रन बन जाएंगे आपके. That's the only way you get 200 runs in test cricket. So I think it's good in the sense to get, you know, maybe more fans into the game who don't want to watch test cricket because it's 5 days long, who don't want to watch one day because it's too long or 8 hours long. This has a good balance because it's only 3 or 4 hours. So I think it's good to bring other fans in or more casual fans in, and this may even get into the Olympics. So it'll put cricket on a map. Yeah. If it does get into the Olympics. Right. So I think I think the answer will be I think it is good for the game. Yeah. I agree. मेरे काफी दोस्त हैं जो कहते हैं नहीं देखते क्रिकेट ठीक, लेकिन उन सबको क्रिस गेल का पता है क्योंकि वो T20 के अंदर उसने भाई ने वो की सही मचाई हुई है, उसका तशन है उसके अंदर. और कहते हैं आप ले लें, कहते हैं टेक जो रूट के बारे में मतलब इतने नॉन इंग्लिश लोगों नहीं पता होगा जो नहीं देखते क्रिकेट because he's not that famous in the T20 format. So I think T20 does help like people get some recognition. Lekin yes, I think it's a good thing. Yeah, नहीं, I think हम पहले बात कर रहे थे ना कि Mohammad Amir, for example, he made the decision to quit Test. So yeah, is kind of hand in hand with that topic, right? Yeah. I actually like T20 a lot. In a sense कि हमने ये जो पहला topic discuss किया है, it might be bad for the game. लेकिन मेरे ख्याल में हमें ऐसे भी सोचना चाहिए, और मैं हमेशा ऐसे ही बात करता हूँ कि मोहम्मद आमिर एक बॉलर है, बहुत अच्छा बॉलर है, लेकिन पाकिस्तान भरा हुआ है बॉलर से, और भरा हुआ है इतने टैलेंटेड प्लेयर्स है जो सड़कों पे खेलते हैं, उनको टाइम नहीं, उनको कोई मौका नहीं मिलता, उनको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती अपना टैलेंट प्रूव करने का, यू नो. सो आई थिंक देयर इज अ लॉट ऑफ आमिर्स आउट देयर इन पाकिस्तान. वी जस्ट नीड टू वीड देम अप, वी जस्ट नीड टू ब्रिंग देम इन, एंड दिस इज एन अपॉर्चुनिटी टू ग्रो द यू नो टेस्ट क्रिकेट के आप अलग रखें रैंकिंग्स, वो आप सिर्फ वो प्लेयर्स रखें जो टेस्ट क्रिकेट के लिए उतनी पैशनेट है जितना you know everybody else, every other country's test team is. So that's how I think of it. Yeah. And that's the reason Amir gets criticized, because it's not because he chose T20 over Test. A lot of people do that. Chris Lynn, he's purely dedicated. He's all his career towards T20 cricket, and there's nothing wrong with that, because obviously like playing cricket is your profession, and you're allowed to choose whatever gives you the best chance of earning the most amount of money and enjoying the thing. Lekin Amir ने जो किया है, like after all the backing from the board, PCB fans, like मतलब कि आप उसके जैसे ही बैन उठा है ना, हर कोई उसको मतलब हर कोई कह रहा है कि आमिर को लेके आओ. उसने एशिया कप के अंदर आया, उसने अच्छी बॉलिंग की, एवरीवन सपोर्टिंग उसको, मतलब लोग भूल चुके हैं. और जब वो कहते हैं when he came to Lords for the first time, he was getting a lot of abuse. English crowd ने उसको सपोर्ट किया, भी कहते हैं it's not right to like bring the bad music up because he was really really young then. And then all of a sudden like he basically like chooses to be a bit selfish. That's I think is why he gets criticized, because because like he didn't pay back PCB enough for the amount and the effort that they like put in. So that's the only reason that he gets criticized. They invested a lot in him, because when he was coming back, he had a lot of opposition. I remember like Hafiz was one player who said like he doesn't want to play because Amir's coming back in the team, but PCB like insisted. अब सलमान बट इतना फेमस नहीं है और कहते हैं उसने इतना कुछ किया भी नहीं था, लेकिन आमिर को लोग एक्नॉलेज करते हैं he was quite young, he has got a lot of potential, that's why they backed him and then they forced him into the side. और इसलिए कहते हैं वो लोग ये चीज़ उन लोगों ने सलमान बट के लिए नहीं की. वैसे टैलेंट तो बहुत ज़्यादा है. मोहम्मद आसिफ क्या बॉलर था, ठीक है, आज वो सही बॉलर था. वो 75 माइल पे बॉल फेंक दे, खेली नहीं जाएगी. 75 पे मैं कराता हूँ, इतनी स्लो होती है वो, लेकिन वो बॉल ऐसी फेंकता है, खेली नहीं जाती. लेकिन उन लोग आमिर पसंद है उसको ये किया. So there might be some specific some specific history with Amir. लेकिन पॉइंट मेरा वही अलग पॉइंट था कि टैलेंटेड प्लेयर्स आपके पास इतने हैं पाकिस्तान में, we just need to find a way to bring them. बेशुमार माशाल्लाह पाकिस्तान और टैलेंट तो खैर बहुत है. This is one thing I think India does pretty good. Like India knows how to get its talent up without this whole सफारिश साइड पे और भतीजा मेरा वो है, भांजे को खिला दो. Like those types of things don't happen as much in India as far as I know. Yeah. उनका फर्स्ट क्लास वो कहते हैं उनका फर्स्ट क्लास डोमेस्टिक बहुत स्ट्रांग है. अगर आप कहते हैं उनका फर्स्ट क्लास डोमेस्टिक, यू कैन मेक रियली गुड लिविंग इजीली. अगर आप कहते हैं पाकिस्तान में फर्स्ट क्लास खेल रहे हो,
ये पाकिस्तान के फर्स्ट क्लास प्लेयर्स यूके में आके ऐसे कहते हैं प्रोफेशनल खेल होते हैं हमारे क्लब्स के अंदर. That's how bad the structure is over there. India के अंदर you can easily make a living, you can easily live a comfortable life towards higher middle class, if not like the top class people. So like they've really structured it really well, and then like if someone performs really good, his name comes out. If you've got the skill set, you will make it to the national side. That all we got बात हमेशा इस पे वापस आती है हमारा domestic structure. हर साल they restructure it in a bid to try and get it to be better. और फिर वही बात है कि as you said, India is very they got like a very good structure. उनकी जो the level of cricket they play in their domestic is probably much better than ours, I guess, at the moment. Right. And it just comes back to that. And one other point was made, this आजकल India के जो BCCI है, for example, or the under-19 team and the current coaching वगैरह, उनके सारे पुराने players involved हैं इसमें, like the good like Rahul Dravid, Ganguly वगैरह. हमारे जो players बैठे हैं ना, वो YouTubers बन रहे हैं. Exactly. Shave Akhtar type. Shave. Either that's the thing. So like use those guys in your like cricket structure. वो लोग हमारे लोग ये कहते हैं कि हमें बुलाते नहीं है, लेकिन आप सर्विसेज ऑफर करें, आप इनिशिएट करें. जैसे यूनिस खान को यूज कर सकते हैं. like he'll be a very very good thing for our structure. like under 19 कोच बन जाए या अभी करंट सेटअप में आ जाए. like मकसद है ना इन लोगों को यूज करें जो हमारे sort of वसीम अकरम तो खैर वो कराची किंग्स का कोच है. so I think वसीम अकरम is quite involved. हाँ नहीं कराची का है, but like PCB Wakar Yunus का bowling coach है, लेकिन Wakar Yunus was very criticized as a head coach itself when he was actually head coach. People didn't like him as head coach, and I think he's a good bowling coach. That's for sure. I think he's a good bowler. नहीं वो भी नहीं है सर जी. कहते हैं वो he was a good bowler. ठीक है, not every great player can turn into a really right. Good Exactly. coach. Just because ये आप देख लें, हाँ. Just because you're a good bowler doesn't mean you can be a good coach or a good a good teacher of the game. ये कुछ चीजें मतलब कि Pakistani players who do well in their career, they think that like they've got the right to just walk into either the coaching setup or the commentary. And one more thing I was going to come like onto this thing was that the commentary in PSL has been quite, I think, bad. Okay, the commentary when you're selling something like on TV has to be point on. IPL के अंदर इतनी मतलब आप सुन रहे हो ना, आप ना देख रहे हो कोई चीज, you will still get entertained. यहाँ पे कहते हैं कि Wakar Yunus, he's thinking about क्या कहना है उसने. It's not being about to speak the language. The commentary is a whole different game. You have to be very animated. You have to like show like passion. You have to show like so basically you have to just make it sound fun. वो कहते हैं ये नहीं कर पा रहे, लेकिन फिर भी because he's been in this coaching setup, he's been a Pakistani legend. He thinks he can do it all. तो कहते हैं ये चीजें कुछ चेंज होनी चाहिए पाकिस्तानी. अच्छा, उस पर दूसरी बात ये कि वो शेब अख्तर के ऊपर जाते हैं वापस. I think we talked about his YouTube channel and everything, how he's doing well. वो जियो पे भी आता है वो. But I just want to go back to Shoaib Akhtar. He was such a force when he first came in. Like that guy was just the batsmen जो थे वो डरते थे उससे खेलने के लिए. Like he was, I mean, he would. I loved watching that guy bowl in his peak, like 99, 2000. Yeah, 99, 2000. Like, he was sick if you watch him. वो फास्ट बॉलिंग क्या है वो बंदा आपको एक्सप्लेन करता है. ठीक है, फास्ट बॉलिंग इज नॉट जस्ट अबाउट बीइंग एबल टू बॉल फास्ट. ठीक है, फास्ट बॉलिंग इज अबाउट हैविंग कैरेक्टर. अगर आपको चौका लगता है, आप बैट्समैन को आंखों में देख के तो एक और नहीं मार देता यहाँ पे. उसके लंबे बाल उसने सभी एक्सप्लेन किए हुए, पसीना आ रहा है, ठीक है, लंबे बाल, उसका 1 किलोमीटर रन मतलब कि वेरी नॉस्टैल्जिक. लेकिन having said that, he's my second favorite fast bowler. Bradley का bowling action makes him number 1 for me. I think Shoaib Akhtar का रन जो था ना वो थोड़ा कम करता था. वो बाब बॉलर ने भी उससे कहा था कि अपना रन थोड़ा कम करो, because the fact is वो इतनी स्पीड पे भागता हुआ आ रहा है. I think that's why his career was cut short because of that, because his run was just so long. वो कभी बाउंड्री से भागता, ऐसा लगा वो बाउंड्री से भागता हुआ आ रहा है. So it was just too long. वो कुछ ज्यादा ही हेंच हो गए थे. हाँ, ज्यादा हेंच हो गए थे. फिर उनके बाद में इंजरी बहुत हो गई उनको, टांग में दर्द हो रहा है, ये हो रहा है, हैमस्ट्रिंग वगैरह ये वो. So I mean it just takes a toll on you as you go on in your career. उसका एक मजाक है ना, I think, I don't know, true है मजाक है कि घुटनों से पानी निकालते थे उसके मैच के बाद. नहीं, that's because he had hyperextension, so he had to have some sort of like a certain amount of like biceps and tricep muscle on his arm ताकि वो दुखे ना. The best, क्योंकि उसके अब देखो ऐसा लगता है वो कितने वट्टा मारा, लेकिन वो वट्टा नहीं मारा, उसकी हाइपर एक्सटेंशन उसकी बाजू पीछे जाके फिर आ गया था. That's very painful. Second, I think the best Shoaib Akhtar moment was कि वो टेस्ट मैच होगा, शायद आप लोगों को याद हो. टेस्ट मैच था इंडिया में, तो पहले उसने ड्राविड को आउट किया, ठीक है ना.
स्लो हाँ ड्राविड का हाँ पहले ड्राविड का आउट किया फिर तेंदुलकर आ रहा है it's like you're watching a movie ऐसा ही है कि आप मूवी देख I'm watching the clip right ड्राविड now. का आउट किया फिर तेंदुलकर उसने फिर ड्राविड का आउट किया फिर तेंदुलकर आ रहा है और क्राउड जो है वो क्रेजी हो रहा है कि तेंदुलकर साहब आ रहे हैं फिर एकदम से शोएब अख्तर आए ठाक करके बोल मारा सारा क्राउड जो था वो सारे Oh man, he was so much fun to watch. So I think he's probably one of my as in terms of a baller, obviously he's one of my favorite ballers because he was such a joy to watch. Shoaib Akhtar versus Sachin Tendulkar was a sight to watch. Yeah. और मतलब Shoaib Akhtar against India altogether. उसने कहते गंगोली के he hit him in the ribs. उसकी मैं हड्डी तोड़ दी थी उसने ब्रायन लारो को इंजर्ड किया कि उसका खौफ था बंदे हाँ वो याद है जब उसने उसका किसका मुंह तोड़ा था उसने क्या साउथ अफ्रीकन प्लेयर था कर्स्टन का उसने पूरा मुंह तोड़ दिया था so Shoaib Akhtar was you know obviously one of a sight to see when he went to in his prime obviously just to see him play it was just a joy to watch. Yeah, his career was too short. अगर वो थोड़ा और खेल रहा था तो हाँ मजा ही आ जाता लेकिन but obviously it's just the way the things were. Now we discussed the worst moment in Pakistan cricket, which was obviously the loss to Ireland, right? I think we can all agree to that. Yeah, I think the 2007 World Cup in recent memory, at least, Mani Jawani mein to. At least in memory. Yeah, that was the worst for sure. So what's the best moment? Champions Trophy, 2017. Again, in recent memory, yes. Yes. Recent memory, yes. I would say yeah. Recent memory, I think that is probably one of the best moments in Pakistan cricket. और मजे की बात वो कि मैंने वो मैच देखा नहीं था क्योंकि मैं I was like India के against हार ही जाना हमने फिर मैं बैठा हुआ मैं I was on my like part time job तो मैं कमेंट्री देख रहा मैं पागल हो गया था कसम से. Yeah, and it was not a close game. We won by like a landslide. The landslide, yeah. We won by a landslide. Yeah, it was. I mean, that was one of the best moments ever. जब वो कोहली का गैट ड्रॉप हो गया है. Edge, dropped. Not a man you want to drop. And then you look up and you see it's Kohli. ठीक है ना मैंने कहा भैया मैच हार गया ये तो खड़ा रहता है ना इसको तो आप आउट ही नहीं कर सकते इसके बाद फिर एकदम से फिर वो फिर उसके बाद फिर वो दूसरी नेक्स्ट बॉल पे उसको आउट करता है आई मीन यू couldn't have asked for anything better. In the air, gone! Not that important, he's gone the next ball. Brilliant from Amir. Pakistan cricket at its best. 1 minute down, next minute up. Terrific stuff from Mohammad Amir and a good catch at point. Yeah, the batsman did a great job, but Amir got the first 3 wickets, and the first 3 were the most important wickets. Rohit Sharma, Virat Kohli, and Yuvraj. Yeah, exactly. और कहते हैं पाकिस्तानी वहाँ भी इतनी जुगते मारते भी कहते हैं उस मैच में 336 का टारगेट सिस्टम होता ठीक है और कोहली नहीं होता तो पाकिस्तान की हाँ नहीं होता जैसे फर्स्ट इनिंग के बाद उनको तंग करने लगे कोहली नहीं होता दूसरे चेज वो मीम आज तक चलती है आज अगर वो तो इंडिया के अपने वाले ना वो जो इंडिया के पुलिस वाले थे ना मीम आया था कि they were using the Bumrah's no ball as a thing as an advert. उसमें था कि वो और I think पुलिस का इश्तिहार था कि do not cross the line ये वो या सजा मिलेगी और साथ बुमराह की पिक्चर लगा दी थी नो बॉल की. उस पर एक मीम बनी थी कि जो मुनीबुर रहमान है ना जो हमारा वो रोल दरहाल कमेटी का जो है मौलवी साहब जो है वो अपने वो मीम बनी हुई है कि वो चांद देख रहे हैं और चांद पे लिखा हुआ है कोहली नहीं होता तो सच्चे से. ओह माय गॉड हमारी आवाम जो है ना ओह माय गॉड बहुत ही फारिग बैठी रहती पता नहीं कहाँ से मीम बनाते रहते इस तरह के आइडिया कहाँ से निकलते हैं. उनकी साइड भी ऐसे ही है जब हम मारते हैं it's like the same stuff. I would say theirs is actually a little bit worse क्योंकि उनका मीडिया भी इन्वॉल्व हो जाता है इसमें. अगर आपने वो देखे ना एड्स उनके जो होते हैं हर अगले साल जो एड्स बनाते हैं पाकिस्तान के खिलाफ their ads can get really offensive. इंडिया का मीडिया इतना गंदा है. Yeah, definitely. जी exactly. अगर आप किसी से कहते हैं लगाओ ना डिबेट कर रहे हो ऑनलाइन ठीक है it's like talking to a wall like literally कुछ लोग होते हैं भी वो अगर आप उनको बोलो ना भी ब्रो तुम ये मैच जीत गए इतनी बड़ी बात नहीं है ओवरऑल रिकॉर्ड पाकिस्तान का ये है वो कहते हैं वो नो हिस्ट्री डज मैटर
फिर कहते हैं अगर हम जीत जाएंगे फिर वो कहेंगे याद है तुम्हें हमने उस साल में हराया था वर्ल्ड कप, तुम अभी तक नहीं जीते, उससे वक्त पास। उनकी ब्रैगिंग राइट्स यही है कि वो हमसे वर्ल्ड कप में अनडिफीटेड है, ठीक है ना, लेकिन ओवरऑल जो वनडे रिकॉर्ड्स है ना, 80s में आप चले जाएं, आप 90s में चले जाएं, even early 2000 में चलो थे, it was a little the times are changing a little bit, लेकिन वैसे we've had a better record than them in one day overall. So and I think अभी ये तो अभी recent memory है, ये तो अभी recent memory है कि वो जीतना शुरू हो गए सारे मैचेस, लेकिन पुराने जमाने में जब मियां दाद था, इमरान खान था, they would always lose to us, we would always beat them, and that was always the case. Bro, they still would, इतने कॉकी। एक याद है कहते पाकिस्तान टूर किया था पाकिस्तान ने इंडिया को, ठीक है, और इन लोगों ने एड्रेस बनाया भी इनको आने दो। जुनेद खान ने कोहली, सहवाग, हर किसी को बोल कर दिया, ह्यूमिलिएशन कर दिया हमने आवाज नहीं। अगर आप देखें दोनों मुल्कों की जो हिस्ट्री है, इनको इंडिया एंड पाकिस्तान दोनों 70 साल पुरानी हिस्ट्री है इनकी, 1947 से, लेकिन द फर्स्ट 50 years ऑफ पाकिस्तान वाज अ सुपीरियर टीम। ये पिछले 20 सालों में थोड़ी इंडिया की डोमिनेंस शुरू हुई है, but India's team became better, more improved. लेकिन पाकिस्तान की डोमिनेंस में ऐसा कुछ नहीं देखा था कि बाप होता है, इस तरह की लाइंस जो अब इंडियन वाली साइड ड्रा करती है। यार इंडिया के जो एड्स आते हैं ना, जो मैच वर्ल्ड कप से पहले एनी बिफोर मैचेस, उनके एड्स देख के यार वो दे थिंक सो हाईली है यार, they बहुत प्राउड है और एरोगेंट बहुत हैं। You just I hate their fans are just too annoying. Players हैं, वो players थोड़े humble से हैं, players are not that bad, they're a little humble, but their fans are just too arrogant and just too cocky, it's just their no doubt. At this moment in time, India's team is one of the best. They play great cricket. वो deny नहीं कर सकता। वो तो खैर बात है। लेकिन obviously जब वो जिस तरह fans वगैरह बोलते हैं ना, जिनकी मीडिया होती है, वो फिर वो काम खराब करती है। फिर हम भी बैठे हुए होते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं फेसबुक के ऊपर, ये वो just fans के बीच में। That's always very common. अच्छा, तो भाई आ रहा है एशिया कप, आ रहा है इस साल, फिर उसके बाद आ रहा है T20 वर्ल्ड कप। तो एशिया कप जो है वो पाकिस्तान, हमारे पास होस्टिंग राइट्स हैं, लेकिन इंडिया तो ऑब्वियसली नहीं आएगा, तो मोस्ट लाइकली दुबई में होगा। I think they agreed to it. They'll do it in Dubai. So ताकि इंडिया पार्टिसिपेट कर सके। वो are they doing just that match in Dubai, or are they doing the entire tournament? Good question actually. मुझे पता नहीं पूरा कर रहे हैं कि नहीं। I think they might just do that one match in Dubai, right? Because India can come to Pakistan right now due to the political situation and everything like that. वो तो खैर नामुमकिन सी बात है फिलहाल तो। लेकिन अभी एक फैंटेसी T20 टीम बनाते हैं। Who do you want to see on the T20 team? Naseem Shah for definite. Shaheen Shah obviously open the bowling. यार बॉलर्स तो बहुत हैं। मैं हमेशा पाकिस्तान के मामले में ना, मैं हमेशा बैट्समैन पे फंस जाता हूँ। I just don't know who are the good batsmen. यार हमारे बैटिंग में मसला है। बाबर आजम is probably the only one I can see as a definite. बॉलर चुनने में मसला नहीं है। Literally the rest is all question. इधर मैंने असल में sorry, T20 में हमारा एक मसला है, who's our keeper? कुछ जो हमारे कीपर है ना, वो T20 की बैट्समैन नहीं है सारे। ना सरफराज की T20 बैटिंग है, ना रिजवान की T20 की बैटिंग है। शर्जील तो आ जाएगा अब तो टीम में, क्योंकि उसकी काफी अच्छी परफॉर्मेंस है PSL। हाँ नहीं, लेकिन यार who's gonna be our keeper ना? रिजवान होगा। Yeah, it should be रिजवान होगा। But रिजवान की बैटिंग नहीं है ना T20, that's the thing. Like he's not made. He scores quite good, like he did in Australia as well. The guy who played from Multan was quite good. मुझे पसंद आया था as a stand-in keeper. Zishan Ashraf के साथ। Like he did the job. Do you know who I really wanted to see in the squad? Umar Akmal. But that guy just hasn't got his priorities right. Okay. PSL से पहले मैच फिक्सिंग में हो गया है। अच्छा, उमर अकमल पे आते हैं। उन्होंने देखा कि जो ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर जो उन्होंने वो चवल मारी है, मीम बन के दिस इज व्हाट आई डोंट अंडरस्टैंड। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो आप मत बोले ना भैया। किसने कहा है आपके आप किसने कहा है कि आप शेक्सपियर के आप कल्लों की जबान बोल रहे हो, आपको पता ही नहीं है कि आपको क्या बोल रहे हैं। तो आपके हमारे जो लोंडे हैं पाकिस्तान में, जो भी हमारी अवाम है, वो तो नहीं छोड़ेंगे आपको। That's for sure. वो तो नहीं छोड़ने वाले आपको इस चीज से। वो आपको तो ऐसा डगरा लगाएंगे कि आपकी सोच होगी। Okay, so you have to be very careful as to what you post. I mean, it almost seems intentional. He said mother from another brother. Mother from another brother, exactly. और फिर उसके बाद जो ऐसे लगता है कि उसने जानबूझ के ऐसे की है। इतनी बड़ी गलती कौन कर सकता है? नहीं उसने जानबूझ के नहीं किया। He made a mistake and he got grilled for it on Twitter. He got grilled for it. But that's what I come back to. It's like, if you don't speak English, it's fine. Just speak whatever you need to. Just speak Urdu, speak Punjabi, speak your local language. It's fine. लेकिन वो बहुत स्कूल समझने के लिए वो ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर, वो मदर फ्रॉम अनदर मदर कर दिया कि वो पता नहीं कहाँ से कहाँ चला गया। अब सब उसका रिकॉर्ड लगा रहे हैं कि ये हो रहा है वो हो रहा है।
Oh my god, that was another high. I think वो PSL के दौरान ही हुआ था ना, या उससे पहले हुआ था? दौरान है, नहीं उससे पहले हुआ था, उससे पहले हुआ था। तो वो कहते हैं मजे की बात ये भी, इसको PSL की सारी तनख्वाह मिल चुकी थी। वो लोग कह रहे थे हमें वापस करो, वापस करो। Exactly. I think he needs to get his priorities straight. उसका जो दूसरा भाई है कमरान अकमल, he is all right too, लेकिन वो दोनों टीम से बाहर है फिलहाल अभी तो। हाँ नहीं कहते, कामरान अकमल भी अपने जमाने में काफी काम खराब कर, वो उसके कैश ड्रॉप देखे हैं यूट्यूब पे जाके, ऐसे लगता है भी मतलब कि मतलब आज थे कि कुकड़ियां भरना आया हुआ, को फड़ी नहीं जा रही हैं, गिरना फड़ी नहीं जा रही हैं। Everything literally was like dropping or slipping out of his hands. Like he's been accused of like fixing games because of those like drop catches. Like that's how bad they were. Like that's how easy they were. But he kept. अच्छा आपके ख्याल से ये जो मैच फिक्सिंग का मसला है ये किस तरह फिक्स हो सकता है? मतलब is there any way around that or just मतलब I mean strict consequences. I think consequences, the fact that people just keep coming back into the side. Like Amir was an exception. I think Amir because he was quite young. I'm getting Shadid shouldn't be allowed back in. I don't think, even though he's a really good player right now, but I don't think he should be allowed back in because he made those decisions when he was fully mature. He was fully conscious of what he was doing, and given the fact that like this Amir saga had happened in 2010, he still continued and he still proceeded to like do all this stuff. I don't think he should be allowed back in. Lekin obviously he will be, because obviously we know that's strict on it. Yeah, Amir was a different case because everyone had sympathy for him as well at that time because they all knew. But he was a kid. Also, किसी ने convince ही किया ना कि कर लो ये काम, but without knowing. It was like Salman Butt. I think he convinced him. Salman Butt, yeah, and Salman Butt is surprisingly, Salman Butt is actually, he was a captain of the team. For him to actually just do something like that and convince them to do something wrong like that, that was just disappointing. आप पाकिस्तान का नाम बदनाम हो रहा है, आपको ये ख्याल नहीं है कि पाकिस्तान का नाम बदनाम हो रहा है, आपका अपना नाम बदनाम हो रहा है इस चीज से, और आपके जो अब तो खैर वो PSL में वापस आ गया, लेकिन he was out of इंटरनेट समझ नहीं आती है। आप लोग देख लें ऑस्ट्रेलिया को, ठीक है, बॉल टेम्परिंग के अंदर 3 बंदे पड़ गए। बॉल टेम्परिंग इज नॉट एज बिग ऑफ अ क्राइम एज मैच फिक्सिंग। हां एग्जैक्टली, ठीक है, उनको स्मिथ को बैन करना पता कितनी बड़ी बात। स्मिथ वाज नंबर 1 टेस्ट बैट्समैन, डेविड वार्नर, दीस टू पीपल आर लाइक स्पाइन ऑफ द ऑस्ट्रेलियन टीम राइट नाउ। उन दोनों ने बैन कर दिया 1 साल के लिए। And like their team suffered as well. उनकी टीम ने suffered भी किया, but it was because they gave the consequences for it straight away. उनको सजा दी थी। Oh, because of that, India won in Australia after 20 years. Exactly. They let that happen because like that was a big thing. Exactly. उनकी तो ये एथिक्स के खिलाफ था जब ऑस्ट्रेलिया ने ये किया था ना, तो जो ऑस्ट्रेलियंस वगैरह जो थे वहाँ पे उनको तो समझ नहीं आ रही ये हुआ कि हो कैसे गया ये। तो मेरे ख्याल से उनकी जो सजा थी वो क्या सजा, उनको सजा क्या हुई थी? ये उनको 1 साल का बैन। आईसीसी ने सिर्फ मेरे ख्याल से 3 गेम का बैन किया था। हाँ exactly, so like that's the thing, they उनके बोर्ड ने रखा था, and they to the extent where the prime minister even said things about them कि ये ऑस्ट्रेलियन नहीं है ये वो, हमारे प्लेयर्स वैसे ही उठ के वापस आ जाते हैं। अच्छा, मैंने एक असल में अपनी टीम बनाई थी T20 की जो होनी चाहिए एशिया कप के लिए और आगे जाके वर्ल्ड कप के लिए। मेरे ख्याल से स्टार्टिंग होती है बाबर आजम, शर्जील खान, मोहम्मद हफीज, एहसन अली, इफ्तिखार अहमद, इमाद वसीम, फहीम अशरफ, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद आमिर, शाहीन अफरीदी, शुएब मलिक को भी डाला हुआ है। I don't know if I should keep him in now after we had our discussion about regarding Shoaib Malik, लेकिन I just have him there. I think he still has something left in him. शदाब ये रिजर्व्स में आ जाते हैं। शदाब खान, मोहम्मद हसनैन, मूसा खान, नसीम शाह, and Fakhar Zaman maybe Fakhar Zaman. I'm not sure about Fakhar Zaman yet. I think he can be a good addition, but I think he hasn't been performing consistently quite yet. फहीम अशरफ को तो निकाल दो, उसमें मिकी हार्सन इतना इन्वेस्ट किया ना उसके अंदर, and उसने कोई रिजल्ट नहीं दिखाया इतना खास। I was also, मैं इसका फैन था, I was like he's got potential ना, बॉलिंग कर लेता है ठीक है, बैटिंग में दिखा नहीं पाया, and उसके अंदर यही थी ना कि he was like a fast bowling all rounder, तो हमें obviously था कि चलो is someone there जो कर लेता है, जिसने बैटिंग में शदाब भी बैटिंग कर लेता अब काफी। मेरे ख्याल से उसने एक न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज थी उसने 50 मारे थे शायद, जहाँ तक मुझे याद है। शदाब इज गुड, उसमें सिर्फ ये होता है कि एज ए टीम में वी कैन डिपेंड ऑन द पिच, हम शदाब और इमाद को साथ नहीं खिला सकते, डिपेंड करता है अगर 2 स्पिनर खिलाने नहीं खिलाने। फिर वही बनता है ना कि आप शुएब मलिक को खिलाएंगे नहीं खिलाएंगे। शुएब मलिक भी स्पिनर की ऑप्शन दे सकता है, लेकिन आई थिंक यू वांट टू कीप हिम देयर फॉर लाइक बैटिंग पर्पसेस।
शोएब मलिक बैटिंग कर जाता है जितना भी हाँ वो डिफरेंट खेलता है और जब जरूरत होती है तो परफॉर्म नहीं करता. He has still won us some matches. उसको मैं and plus it's gonna be his last वैसे तो like he has performed. ऐसी बात नहीं performance है भी कि तो वैसे ही वजह से क्रिकेट Shoaib खिला Malik रहे had हैं. some good runs in his career from what I remember. He was actually I think early like 2006 or 7 he was actually Yeah. pretty good. He actually performed pretty well. Mhm. Like and I think in recent memory I don't remember Shoaib Malik actually दोनों की यही स्टोरी है ना, हफीज की और शोएब मलिक की भी. Hafiz की और Shoaib Malik की दोनों की यही story है यार. The senior players are the ones who should be at their prime. Well, not at their prime, but they're the seasoned players, right? लेकिन अब वो recent years में perform कर ही नहीं रहे दोनों. So that's why it's a tough Yeah, and decision. they're the लेकिन more मेरे ख्याल में टीम में थोड़ा young talent का balance अब थोड़ा ज़्यादा कर देना चाहिए उनको, ताकि इनको आप groom करें yeah अगले exactly. 10 सालों के लिए, you know? hmm Yeah, exactly. Yeah, and I think the surprising thing is they're the most experienced people. Both of them have been Yeah. captain before. That's for sure. I think one day, and I think even in T20, I think Hafiz रह चुका है. नहीं, Hafiz नहीं. Shoaib Malik रह चुका है T20 का captain, if I'm not mistaken. दोनों रह चुके हैं T20 दोनों रह चुके हैं, yeah, दोनों रह चुके हैं captain. So I mean, they're the most experienced. They know. They've been playing for 15, 16 years. So the fact that they don't perform in clutch situations and when they actually need to, it's kind of disappointing because you kind of need to step up. That's what you're actually there for. You're there as a veteran presence for the younger Mhm. players. You can't go into a high pressure game and expect the younger kids to perform. You know, that's not. I mean, वो बखला जाएंगे बेचारे. जाहिर सी बात है. I mean, at the end of the day, if you're at that big of a Yeah. stage, आप बखला Right. जाएंगे. So I think that's why I kept Hafiz and Malik in on the team just for the veteran experience and the 15, 16 years of experience that they have. Yeah. So, Right. but yeah, let's see. I think it should be a interesting interesting last few months up to of 2020. We have the Asia Cup and then we have the T20 World Cup. So Yeah. It should be exciting for sure. But I just hope कि पाकिस्तान की टीम perform करे and like अगर जीतना और हारना खेल का हिस्सा है, everybody knows that. I think every mature fan knows that too. कि कभी-कभी हम हार जाते हैं कोई मसला नहीं. You know, there's a lot of really good teams out there. लेकिन आप हारें भी इज्जत से, dignity के साथ, थोड़ा fight देके आप. या ऐसे नहीं कि आप yeah, exactly. you're just throwing away matches. Yeah, Yes. exactly. I strongly agree. हमारी टीम में तो हारते हैं ऐसा बुरी तरीके से. यही मसला होता है. हम लोग जब हारते हैं ना, हाँ मतलब हाँ एग्जैक्टली लगता है कि फाइट ही नहीं की. Whereas if you fight and you lose, हाँ ठीक है बंदा at least you put an effort in. You can say कि हाँ close था मैच या at least you put an effort in. लेकिन जब हम Yeah. हारते हैं तो लगता है like all exactly. hopes lost. मतलब कुछ हो नहीं रहा एक बस. दूसरा मसला ये है कि अगर एक बंदा आउट होता है ना तो डोमिनो इफेक्ट होता है. सारे आउट होना शुरू हो जाते हैं. सब प्रेशर में आ जाते हैं. कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या वही ना करें. कि मोमेंट्स आके पे हम पहले हंस रहे थे when he said last year कि he started the statement के सर जो हमारे जिस मुल्क में आप स्ट्रगल कर रहे हो इकोनॉमी इतनी अच्छी ना हो वगैरह वगैरह उसमें ये छोटी-छोटी खुशियां हैं उनमें से क्रिकेट एक है. बात तो बाद में बहुत फनी हो गई थी लेकिन बाद में वजन था कि वाकई यार we need these types of wins or at least some type of entertainment and performance from our team ताकि हम भी ऐसा महसूस करें कि we are something, right? Cricket is one of the I think defining things about Pakistan. और अगर आप क्रिकेट को जैसे छोड़ देंगे if you have like these players just throwing the matches away consistently, बुरा दिन गुजरता है. A few players have bad days, right? लेकिन सारे या 4-5 players आधी से ज़्यादा टीम आपकी just throw the game away. Right. Yeah. And the unity that you see in Pakistan whenever you have a Pakistan versus India match. And I always say this: if you want to unite Pakistan together, just have a Pakistan versus India match. Watch how all of Pakistan just gets together. Right. Exactly. It's not rocket science, क्योंकि कभी-कभार मसले चलते रहते हैं कि बलूचिस्तान में मसले चल रहे हैं, सियासी मसले चल रहे हैं, ये चल रहे हैं, वो चल रहे हैं. लेकिन but if you want to unite all of Pakistan, just have a match. Just if the cricket team is doing good, Pakistan will be all united. And if you have a match, Pakistan India का मैच हो जाए ना, पूरा पाकिस्तान सारे सड़कों पे निकल आएंगे. That's for sure. Yeah. सारे सड़कों पे निकल आएंगे and one thing I mentioned, one of the other great memories of Pakistan cricket was the T20 when we won the T20 World Cup in 2009. That was also great. That was also a great memory. Yeah. So not sure why I didn't think of that when it came to game. I mean, maybe मेरे ख्याल से Champions Trophy जो है वो recent memory में हुई है तो मुझे शायद वो ज़्यादा याद हो. Yeah, exactly. But winning the T20 World Cup in 2009 was also another great for sure. recently in today's time, contemporary time. अच्छा एक बार हमने बात नहीं की एक बात के बारे में PSL, going back to PSL, right? वो सारा तो चली गई है, she had to run some errands, लेकिन वो बता के चली गई कि she supports कराची. तो जब भी उनको मौका मिलता है ये सेमीफाइनल और फाइनल करने का, ये ख़त्म करने का PSL इस साल का, she's rooting for Karachi. And what I wanted to hear from you guys, I think I know who you're rooting for, all three of you. लेकिन आप ये बताएं कि आप किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं और कौन सी टीम आपके ख्याल में एक्चुअली जीतेगी. Like who do you support and who do you actually think will win?
और एक्चुअली इसमें एक और फैक्टर भी है, उससे पहले डिस्कस कर लें कि वो जो प्लेयर्स जो चले गए बाहर के, जो टीम का हिस्सा थे, खास तौर पे लाहौर के, बेन डंक, Chris Lynn, which really carry the whole team. Will they come back? I don't know the answer to that. Maybe one of you guys knows the answer. I think we have the PSL का जो इस दफा जो उनको पाकिस्तान में बहुत मजा आया. I mean, if you go to their Twitter handles and everything, they've enjoyed their time in Pakistan. I think starting PSL, हमने एक बंदे को credit नहीं दिया PSL की शुरू करने में. That was Najam Sethi. He started PSL. Najam Sethi was there जब नवाज शरीफ जो था वो he was on the government, so Nawaz Sharif appointed Najam Sethi, and Najam Sethi actually started PSL. And he's the one who actually brought PSL to Pakistan, and it was actually well needed because India had IPL and Bangladesh had had their own Premier League, and I don't think we had a league, and we needed that. We needed a league of our own, league itself. I think the internationals will come back because now they know that Pakistan is actually halat theek hai and everything is fine. वो security के मसले नहीं इतने जैसे पहले थे. So I think definitely they'll come back, and I think Pakistan we've put a good image out there with the sold out crowds that we've had in our stadiums. Yeah. And it just really goes to show that we love cricket and we want more cricket to come back to Pakistan. And I think now you see this. I think this is a trend now because PSL is hosted entirely in Pakistan. So now you see more, you're going to see a lot of series coming back to Pakistan. एक गोरा टीम आ जाए ना, एक गोरा टीम आ जाए बस उसके बाद everything is back to normal. Cricket is happening back in Pakistan. All the stadiums are full. बस एक गोरा टीम की आने की देर है. I think इंग्लैंड की टीम आ जाएगी इंशाल्लाह. साउथ अफ्रीका मुझे लगता है ये कराना है था. साउथ अफ्रीका might be the one. उनका schedule का था कोई मसला. Yeah, I think players आ जाएंगे वापस, वो इशू नहीं. Obviously, it all depends on the corona situation, but I think they're all very satisfied. Like सब they happily played, enjoy किया, crowds में खेलना, which obviously Middle East में नहीं मिलता था. In which case then Lahore will win, right? Lahore, inshallah. Lahore Qalandars का भी time आएगा भाई. मस्त. Lahore. I actually like the name. I love the name though. सबसे फनी बात मुझे जो लगती है ना, मैं खुद कभी ट्रोलिंग करता हूँ, राइट. मैं लाहौर का फैन हूँ obviously in this case, right. लेकिन मुझे पता है कौन लाहौर को कैरी कर रहा है. लेकिन मैं जब भी लाहौर जीतता है ना, this year I've been trolling people like लोहरी है बस, लोहरी है बस, हमारी रगों में जो खून दौड़ता है ना वो लोग है. Yeah, Lahore है भाई, Lahore है, that's for sure. Right. But yeah, what do you guys think? Who has an actual chance to win? I'm going to say this. I think Karachi's team is very strong. That's for sure. I mean, based on what the team that they have, Babar Azam, they have Shajil Khan opening. उन्होंने 10 विकेटों से मैच जिता लिया भाई. Yeah. Unfortunately, हाँ, कराची टीम अच्छी जा रही है, but कराची टीम पसंद नहीं है. Yeah, Karachi की ये बात है. Karachi got kind of destroyed by Lahore the first time around. Like in the second time, they kind of figured out. They learned really quickly. बॉलर्स खास तौर पे जो गद्दाफी में मैच हुआ था ना, गद्दाफी का मैच हुआ था, उसमें लाहौर जीत गया था, लेकिन नेशनल स्टेडियम का मैच हुआ था उसमें कराची ने कोट लगाई थी पहले. Exactly. Yeah, Hassan, did you get to answer the question? Who do you think will win? No, I didn't actually, but like I'd prefer if Lahore won because Fawad Rana बेचारे ने बहुत दुख से जिंदगी में वो हमेशा जो राणा साहब हैं हमारे, राणा साहब जो हैं वो असल में काफी है, उन्होंने काफी he's been a really good sport, like he's been supporting exactly throughout. I think he deserves to have this. But definitely, if I think if there's one team that actually had to win this PSL, I think Karachi had a good shot. But obviously, we don't know who's going to win this PSL because it got postponed. So we can just like to assume. Yeah. We can just like to assume who actually won. हम सब इस बात Multan have done well all tournament though. हम सब ऐसी बातें कर रहे हैं, but they've done. Yeah, true. Multan has consistently done well. Lost a few matches towards the end. Like Multan is a serious contender, I think. But yeah, Karachi, I agree. Karachi has a all-around really good team. I think Karachi has a great chance of winning. I think if this PSL did not get postponed due to Corona की वजह से postponed ना होती ना, मेरे ख्याल से कराची जीत. नहीं कराची ने अल्लाह माफ करे ऐसी बातें नहीं करते. ये पता लग रहा है कि पक्का लाहौरी बोल रहा है. I actually want या लाहौर जीते या कराची जीते क्योंकि I just like different teams to win. नहीं यार, मुल्तान या लाहौर जीत जाए. I mean मेरी अम्मी जो है वो कराची की है, मेरा अब्बा जो है वो लाहौर के हैं. Yeah. So I'm obviously neutral in this Karachi Lahore debate, but I'll be happy with whoever wins because at the end of the day Pakistani जीत रहा है at the end of the day, so that's the way I look at it. Actually, Habib, you actually have an episode, right? You actually have an episode, Islamabad versus Lahore, Karachi.
Yeah, बड़ा stupid सा episode था जो हमने किया था शुरू में. It was one of our first few episodes. उसमें ऐसे हमने कोशिश की थी थोड़ा पड्डा डालने की, लेकिन कोई पड्डा वगैरह हुआ नहीं. We just ended up talking for like a... No, yeah, obviously it's obviously a friendly discussion, obviously. Yeah, exactly right. उसमें मैंने एक कराची की लड़की, एक 2 लाहौर के बंदे और 2 इस्लामाबाद के. कराची का सिर्फ एक ही मिला था, I think. And then we just talked and it was fun. Yeah. Maybe we'll redo that someday. That's for sure. मैं खुद नकली लाहौरी हूँ. I was born in लाहौर, लेकिन मैं 6 साल की उम्र पे यहाँ आ गया था. तो मुझे लाहौर के बारे में कुछ पता नहीं, बस मेरा एक्सेंट लाहौरी है. जब मैं उर्दू बोलता हूँ मेरा लाहौरी एक्सेंट निकलता है. उसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता. अच्छा, मेरा असल में पूरा कराची एक्सेंट है जब मैं उर्दू बोलता हूँ. I don't know if you guys noticed or not. It's very Karachi accent. अगर हम ऐसी बातें कर रहे हैं फिर तो मैं कभी लाहौर में रहा नहीं. मैं तो I was born in the Middle East, तो मैं तो कभी पाकिस्तान में रहा भी नहीं. But दिल लाहौर के साथ. वो खून हमारा लाहौरी है. बेंटंग भी लाहौरी है. बेंटंग भी है. वो पंजाबी है ना एक तरह का. वो बेंटंग वो पैदा लाहौर में हुआ था एक्चुअली. वो ऑस्ट्रेलिया बाद में गया, उसको पता नहीं अभी. हाँ, लाहौर में पैदा. वो पेशावर, असल में वो पेशावर में पैदा हुआ था, ब्रॉट अप लाहौर में होता है. Yeah, there you go. कंफ्यूज कर दिया लोगों ने. Yeah. All right. Okay, thanks guys. Good talking to you. Yeah, nice talking to you. Thank you. Okay. Allah Hafiz. Allah Hafiz. Assalamu alaikum. If and when PSL decides to hold its semi-finals and final matches for 2020, we'll probably have to get back together again and discuss the results. You already know by now our group's favorite teams, mostly Lahore Qalandars and Karachi Kings. So let's see who actually wins. Stay safe, stay healthy. We'll see you next time.